वॉइस पीछे आ रही है? अच्छा, तो जस्ट अगेन तो फॉर द लास्ट 18 years I have been mentoring the history and optional paper and general studies together, and just I got request from Mishra sir, and finally I decided to start from here. So before going to start history, we have lot of myth about history, how to study history, because for the last 4-5 years UPSC is gradually changing the trend. As suppose anybody can tell me the definition of history, what do you mean by history? When the term history comes in your mind, often we suppose it is a very boring subject. Whenever term history comes in your mind, how you feel about it? What do you mean by it? Why we are studying history? At least it is very essential. Any answer please? Why, at least simply what do you mean by history? इतिहास। नहीं, सही है, बिल्कुल सही कहा, यहीं से बोला जाएगा। हिंदी में आपने बताया, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? जैसे आपने उसमें ऐसे बोला, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या? ये वाला इतिहास तो नहीं? Any answer please, ना? What do you mean by history? जैसे पॉलिटिकल स्टडी ऑफ द पास्ट, ओनली पास्ट, और एज सपोज एज अ वर्ड हिंदी इतिहास, इति मतलब ऐसा हुआ था। तो ट्रेडिशनली एज वी बिलीव हिस्ट्री इज सिंपली अरेंजमेंट्स ऑफ events into chronological order. It is supposed to be traditionally history be supposed like this. And who is called as the father of history? 6th century BC. Fine, he was a Greek historian. First time he wrote a book by the name Historica. But guys, what is important here? Since we are preparing, you all are preparing for civil services, UPSC के इतिहास में इतिहास का मतलब कुछ और भी हो जाता है. Here we say history is simply arrangement of events. इतिहास मतलब ऐसा हुआ था. If we say like this, history means arrangements of events into chronological order. But in UPSC, for the last 3-4 years, you may surprised to know, UPSC has a very broad vision how to interpret the questions, how to frame the questions. Just 2 years back, a question was arised in the mains especially. No doubt in prelims you can easily go through. But in the mains, this ऐसा हुआ था. UPSC ने कहा है कि इसमें क्वेश्चन कैसा बनाया गया. The way the UPSC is preparing question, हुआ भी नहीं है तो भी UPSC का इतिहास है. जो घटनाएं, events going in the past, events going in the present, even going in the future. Just 2 years back, the question was arised. Suppose Gandhi was missing. In the independence struggle, what could be the typology of India's political movement? That randomly, how you can write a good answer because the whole history is revolving around Gandhi. From 1920s onwards, whatever history we are having, Gandhism is the whole history. Gandhi became a charismatic authority. So guys, sometimes it becomes very challenging how to write these answers. तो यहाँ पर इतिहास ऐसा हुआ भी नहीं, फिर भी UPSC करी. बताइए क्या लग रहा है आपको? गांधी नहीं होते तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप क्या होता? 2 साल पहले UPSC ने पूछा है. और लास्ट ईयर आया है, हाउ यू कैन जस्टिफाई गांधीज्म इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ कंटेम्परेरी सोसाइटी. तो कहीं ना कहीं से इसका मतलब समझ गए हो UPSC का मोटिव क्या है. UPSC इज नॉट चेकिंग प्योरली नॉलेज. UPSC प्योरली नॉलेज चेक नहीं कर रही है. UPSC is going beyond one step beyond knowledge. Vision, how you have interpreted the history, how you have taken the meaning from history. So guys, this is very important. So don't be very bookish. Go through the books and try to search out how the transformation is going on. So here, this class is simply introductory class. Here I will explain you how to go through the history, ancient, medieval, modern, because this is very essential. We suppose history is a very boring subject. Right from childhood we have stigmas about history. So here, just I will clarify all these things. So now it means now it is very clear. History is not like this only. We can say like this. What is history then? History is not only arrangement of events into chronological order. Then what is history? It is also understanding of forces of changes and forces of continuity, which together bring transformation in society. That is not only a definition. Just I will give you some examples. So what is history? It is not only arrangement of events into order. Then what is this? Then what further it is? It is understanding of these twin forces. One is this. Second is forces of continuity. Because why we are wasting our time in history? Simply because we know it is not wasting our time. How from past to medieval, from modern, how transformation was going in the different structures of society. It is very important. It helps us
to frame our future also. So see how we can understand history. It is not only arrangement of events into order, then what it is, we can say like this, it is also understanding of these two forces, changes, continuity, which together bringing transformation in society. And you know, history may we have only 4 transformations in society: social, socio-cultural, you can say, political, economical, and cultural, you can say. कल्चर को आप चाहे अलग बना दीजिए, कल्चर में ले चला जाता है. हिस्ट्री में सिर्फ 4 ही चीज़ होती हैं: सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, you can say political, economical and cultural. Cultural means religious also. So whenever you go through the ancient history, medieval history, whatever it is, try to identify these forces lying in the base. Once you develop this habit, you know, I can assure you, histories will not be challenged for you. You can easily write the good answers in the mains also. So now it happens, now the problem is, what is the force of change and what is the forces of continuity? Automatically, can you tell me an example of forces of changes, how the history is changing? Like today, you know, today we have parliament, today we have movements like this and this. Today we have Supreme Court is giving decisions. How the history of Kashmir has changed? It means today we have democratic structures, parliamentary bodies, judicial bodies, movement is going on. So these all can be called as forces of changes. For example, some inventions, I means invention. Some invention may be there, some discovery may be there, some movement may be there, some law may be there, some nature of a state like democratic state, communist state, whatever it is. So these all, in every chapter, try to identify any of them is there or not. Then what is forces of continuity? You know, Indian society, even today, although we are witnessing globalization, right from 2000 onwards, not 2000, 1990s onwards, you know, we have witnessed drastic reforms. And today Indian society is experiencing what? Globalization. But even then, Indian culture had maintained its presence. Why? Because these forces are equally strong. What is forces of continuity? Your customs, your values, your traditions. भारत वैश्वीकरण के बाद भी आज भी संस्कृति बची हुई है. ये क्वेश्चन से लास्ट ईयर यूपीएससी में मेंस में आया था. Why Indian culture had not decayed for the last 5,000 years? It is very surprising, amazing. पिछले 5,000 सालों से भारतीय संस्कृति का क्षय नहीं हुआ है, जबकि विश्व की सभी संस्कृतियां कहां पर हैं? म्यूजियम में. इसमें ऑल अलाइंग इन द म्यूजियम. तो समथिंग इज देयर, समथिंग मीन्स वेरी. दिस इज द रीजन. इंडियन कल्चर के अंदर ये फोर्स भी साथ में चलता है. तो वी आर अडेप्टिंग टू द चेंजेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वाई वी हैव नॉट बिटस ब्रेक डाउन? Because whenever changes are going on, we are adapting itself without breaking ourselves. इसमें क्या आता है? इसमें customs, values, traditions, they are equally strong. The day one when India witnessed breaking of this system also, then we can become an open society. But it is next to impossible. So I think you're getting this point. So it means now see. This is simply, it means whenever you go through a history, ancient, medieval, modern, try to identify any of this. This is just I am giving an example. See, first example is coming from ancient history. Just we have discussed what is force of changes, some invention, discoveries, law, this and this. Just take this example. दो साल पहले हिस्ट्री के लास्ट ईयर ही आया है. हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन आ गया, कभी जीएस में भी आ सकता है, आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा. बिकॉज यूपीएससी का जो स्पेक्ट्रम है बड़ा वाइड है. तो ये भी एक फोर्स ऑफ चेंज है. और आप जस्ट इमेजिन कीजिए, इफ आयरन कुड नॉट बी हैव बीन डिस्कवर्ड, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ ही कुड बी लिविंग. तो इम्पॉसिबल था. तो डिस्कवरी ऑफ आयरन, लोहे की खोज की कही जा रही है. कैन यू टेल मी द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन? कॉपर. वेरी गुड. Copper was the first metal used by the men. Then gold and silver all is coming, but iron is coming very late. And you know what is copper? Copper is very flexible. You cannot think about surplus agriculture. Some type of subsistence agriculture was going on. That means discovery of iron was a turning point in the history of India. We know it, but we are unable to connect this with the transformation. Last year history के optional paper में क्वेश्चन ये आ गया था.
how this discovery of iron technology was a turning point and how it had influenced the structures of society. Everything will be influenced, you know. तो देखिए हम कैसे इसको जोड़ा जा रहा है, फोर्स ऑफ चेंज कैसे जोड़ेंगे, आपको सरप्राइज होगा. Approximately around 800 years of history of ancient India is revolving around iron. उसका बेसिक थीम आयरन ही है. आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ द आर्यन वैदिक पीरियड, नाम सुना होगा आपने. आर्य काल, वैदिक काल बोलते हैं उसको. व्हाट इज द टाइम स्पैन ऑफ द वैदिक पीरियड? एनीबॉडीज टाइम स्पैन ऑफ द वैदिक पीरियड? वेरी गुड, वेरी गुड. सॉरी प्लीज. दैट इज it is like this. Total Vedic period. In between we have, yes, come in. In between, you know, we have, historians have classified this period into two parts, early Vedic, later Vedic. Early period is also called as Rig Vedic period. So just keeping in mind, guys, it is how many years interval? 900. BC में आपको मालूम होगा उल्टा गिनते हैं हम लोग. AD में हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिनते हैं. तो ऑलमोस्ट इट इज अराउंड 900 years. Vedic period is around 900 years, and the first 500 years, that is from here to here, it is almost 500 years. Iron got discovered in the Indian subcontinent. So just see how this whole society you can study with that basic concept of iron. In the early Vedic period, early Vedic means from here to here. In this period, see how we will frame the history. Before and after. Sorry. So first it is early Vedic period, and post 1000 is called as later Vedic period. So when you go for NCERT or whatever books you go, we simply cram it. What is society, what is polity, what is economy, and just I had discussed what is history, understanding of forces of changes along with the transformations. इतिहास को पढ़ते समय ध्यान रखा जाए कौन से ऐसे बल हैं जो इतिहास को बदल रहे हैं, उनको जोड़ने का कैपेबिलिटी धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आयरन गॉट डिस्कवर्ड समथिंग हियर. व्हाट वाज सोसाइटी बिफोर आयरन? इट मीन्स व्हाट वाज सोसाइटी बिफोर इन द अर्ली वैदिक पीरियड. तो सी हाउ वी विल डिस्कस हियर. कैन यू टेल मी व्हेन सोसाइटी इज नॉट हैविंग आयरन, व्हेन आयरन वाज मिसिंग, कॉपर वाज देयर, बट यू नो व्हाट इज कॉपर? कॉपर इज हाईली फ्लेक्सिबल. यू कैन नॉट थिंक अबाउट सरप्लस एग्रीकल्चर. तो बिफोर डिस्कवरी ऑफ आयरन, agriculture was known to the Aryan, we cannot deny, but the agriculture was subsistence, you know, only subsistence type. It was not surplus. So see how we will discuss here. First we are discussing economy. Simply by demarcating iron got discovered. Before iron got discovered, early Aryan society was pastoral. You know what is pastoral? Cattle rearing was the main occupation, and you know what is cattle rearing? You are not having a surplus. Whatever surplus you are having, whatever milk and curd you are having, they will decay in 24 hours. So in this society, economy was very simple. Agriculture as such, surplus has not evolved. Society was cattle rearing, pastoral society, nomadic society. In the society, economy was very simple. Automatically you can think about this. Once economy becomes surplus, only then city will take birth. Unless your economy is not surplus, city can never take birth. शहर कब बनते हैं? जब कृषि अर्थव्यवस्था आदि शेष होती है. इन अर्ली आर्यन सोसाइटी एज सच सरप्लस एग्रीकल्चर वाज मिसिंग. क्यों? हमने कह दिया आयरन नहीं है तो खेती कहाँ से हो जाएगी? भाई खेती है, काम चलाओ खेती है. मेन ऑक्यूपेशन वाज कैटल रेयरिंग एंड मिल्क, कर्ड एंड घी. यू नो दे वर देयर. यू कैन नॉट थिंक अबाउट एनी डोमिनेंट इकोनॉमी. द इकोनॉमी वाज वेरी सिंपल एंड कैटल वाज अ सोर्स ऑफ स्टेटस. आप देखें लड़ाई भी जो होती है कैटल्स को लेकर होती है. आप देखेंगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अर्ली आर्यन किंग्स वर फाइटिंग फॉर द not land. Battle was going not for land, battle was going for cattle, because cattle was the source of status. Everything is revolving around economy, you know. तो इकोनॉमी was very simple. और आपको मालूम है जब इकोनॉमी सिंपल है तो करेंसी की जरूरत ही नहीं है हमको. करेंसी कब आएगी? जब इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो जाएगी. जैसे आज आप देखें
आज हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो गई, उस समय इकोनॉमी लिबरलाइज कब होगी? जब आयरन आ जाएगा। तो यहाँ पर इकोनॉमी इज वेरी सिंपल बिकॉज इट इज नॉट सरप्लस, देयर इज नो नीड ऑफ मनी एंड यू आर वेल अवेयर। जब इकोनॉमी बहुत सिंपल होती है, हमारे पास टाइम बहुत सारा होता है। जैसे देखिए आज टाइम नहीं हमारे पास, टुडे वी आर गोइंग फॉर ऑनलाइन बैंकिंग बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। आप देखें 3 साल अभी 4-5 साल पहले से क्या हो रहा है भारत में, बिकॉज टुडे वी आर विटनेसिंग ग्लोबलाइजेशन। और जब मनी आएगा तब क्या होगा? लिबरलाइजेशन आ जाएगा। तो बिफोर आयरन इकोनॉमी वॉज वेरी सिंपल, देयर वॉज नो सरप्लस, अर्बन सिटीज वर मिसिंग, विलेज सोसाइटीज वर देयर, बार्टर सिस्टम वॉज अ मोड ऑफ एक्सचेंज एंड कैटल्स वर सपोज टू बी द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जस्ट इकोनॉमी वॉज वेरी सिंपल, नो मनी इकोनॉमी। And what about society? See, I am simply giving you example. Society means, what was the framework of society? Just think in this way. Can you tell me anybody is aware this word system and caste system? नाम तो सुना ही आपने, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। In early Vedic society, if a question is arise, because UPSC asks MCQ 1, 2, 3, 4, 5. So just if a question is arise, this caste system or word system was there in the early Vedic society? Anybody yes or no? Word system, varna system was present in the ऋग्वेदिक सोसाइटी। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? हाँ, लेटर वैदिक हो जाए। अर्ली वैदिक में हम बोलते हैं इनकरेक्ट, हम रट लेते हैं उसको, हम कहते हैं भाई किताब में लिखा है इसलिए होगा, क्योंकि आपने इसके इतिहास को ऐसे जोड़ा नहीं है। जिस दिन आप जोड़ लेंगे आपको डाउट भी होगा तो भी आप सही आंसर लगाएंगे। आप लॉजिक लगाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे? ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। जिस सोसाइटी में इकोनॉमी सरप्लस नहीं है, इकोनॉमी अधिशेष नहीं है, समाज में टकराव कब होता है? जब इकोनॉमी में सरप्लस होता है। ये ह्यूमन नेचर भी है। अगर क्लास में 25 लोग बैठे हैं और यहाँ 25 लिम्का रखी हुई तो लोग 25 में संघर्ष नहीं होगा। जहाँ 30 आ जाए तभी संघर्ष। संघर्ष कब होता है? जब एक्स्ट्रा होता है। ये ह्यूमन नेचर भी है। अगर 25 लोग बैठे हैं, 25 चीज़ें हैं तो आराम से बांट लेंगे। जहाँ 26 होगा संघर्ष को, 26 किसके पास जाएगा? जो ताकतवर होगा, जो बुद्धिमान होगा वही छीनेगा। आप समझ गए मतलब? सोसाइटी में जब सरप्लस होता है तभी स्ट्रगल होता है। समाज में जब अधिशेष होता है संघर्ष तब होता है। और मनुष्य ईश्वर की ऐसी कृति है ना, ह्यूमन बीइंग इज सच ए यूनिक क्रिएचर ऑफ द गॉड। अगर प्रॉब्लम है तो आंसर भी है। यू कैन से इन दिस वे, इन अर्ली सोसाइटी कास्ट सिस्टम और वर्ड सिस्टम वाज मिसिंग बिकॉज एज सच देयर इज नो सरप्लस। सोसाइटी वाज इगलिटेरियन, मीन्स ऑल वर ऑलमोस्ट इक्वल। Only cattle was some source of status, otherwise all are equal. One system as such has not evolved. People can change their occupations, but it means society was egalitarian. Caste system has not evolved. Now see what is polity. To see how we are demarcating history simply by taking an example of iron. See how was the polity. Can you tell me? In early Aryan society, that is Vedic society, whether the modern state has evolved? Modern state, आधुनिक राज्यों का जन्म हो गया था? नहीं हुआ, नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है राज्य का निर्माण भूमि पर होता है, हवा में नहीं होता है। राज्य का निर्माण जानवर पर नहीं होता है, भूमि पर होता है। लैंड टेक्स बर्थ ऑन स्टेट टेक्स बर्थ ऑन अ लैंड। और लैंड की इंपॉर्टेंस तभी आएगी जब सोसाइटी स्टेबलाइज हो जाएगी, जब आयरन आ जाएगा। आयरन आएगा तो एग्रीकल्चर सरप्लस हो जाएगा। देन किंग विल ट्राई टू डिक्लेयर हिज कंट्रोल ओवर अ लैंड। बट इन अर्ली सोसाइटी वॉज नोमैडिक। आपको मालूम नोमैडिक किसे कहते हैं? पेस्टोरल सोसाइटी। वॉर इज गोइंग फॉर द कैटल्स, समटाइम हियर समटाइम देयर। इन अर्ली सोसाइटी पॉलिटी वॉज वेरी सिंपल, यू कैन से। मॉडर्न स्टेट हैज नॉट इवॉल्व, दैट इज जनपद हैज नॉट इवॉल्व। इट इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी, इट इज वेरी अमेजिंग ऑल्सो। ये विरोधाभास है। राजा तो है लेकिन राज नहीं है। तो आप कहते हैं राजा किस बात का भाई? तो वी कैन से लाइक दिस, इन अर्ली सोसाइटी किंग वॉज देयर बट स्टेट वॉज मिसिंग। तब राजा किस काहे के राजा है बताइए आप? किंग का है। किंग वॉज गवर्निंग व्हाट? किंग वॉज गवर्निंग हिज ट्राइब। राजा तो है परंतु राज नहीं है। तो राजा किस बात का भाई? आपने कहा राजा वो कबीले का राजा है। तो किंग वॉज द हेड ऑफ हिज ट्राइब, ही वॉज लीडिंग द हिज ट्राइब इन द वॉर और सम इन एक्सपीडिशन ऑफ टू कैप्चर द कैटल्स। बट एज सच modern kingship has not evolved. Neither modern state has evolved. King was there, but he was the leader of his tribe. और आपको मालूम है जब राज नहीं है तो साम्राज्यवाद भी नहीं होगा। राज के विस्तार को हम क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म बोलते हैं। तो किंगशिप, मॉडर्न किंगशिप हैज नॉट इवॉल्व, ऑल्दो किंग वाज देयर बट मॉडर्न स्टेट वाज मिसिंग
और साफ साफ लिखा है, किंग वॉज गवर्निंग हिज ट्राइब एंड ट्राइब वॉज कॉल्ड एज जना। इम्पीरियलिज्म वॉज मिसिंग, साम्राज्यवाद कहां से आ जाएगा? एटोक्रेसी वॉज आल्सो मिसिंग। अकड़ जब ही आएगी जब जेब में पैसा होगा। जब कृषि अर्थव्यवस्था ही नहीं है तो राजा बड़ा सिंपल है, सभा समिति संस्थाएं होती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, हम सिर्फ आयरन के बेस पर सोसाइटी के बारे में डिमार्केट अपने आप कर रहे हैं। तो हमने देखा कि भाई सोसाइटी कैसी होगी, पॉलिटी कैसी होगी, इकोनॉमी कैसी होगी। अब देखिए हम कल्चर पे आ रहे हैं। बिफोर क्या कल्चर मतलब धर्म की बात की जा रही है, संस्कृति की बात की जा रही। अगर आप प्री आर्यन सोसाइटी में देखेंगे, आप ऋग्वेद में देखेंगे, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में कहीं भी आत्मा, दैट इज सोल एंड साल्वेशन। साल्वेशन क्या होता है भाई? मुक्ति होता है, निर्वाण होता है। इसको और समझाइए, मुक्ति किसे कहते? मुक्ति काहे की मुक्ति चाहिए? आज कोई चाहता है, आज की तारीख में अगर कहा जाए 2021 में कोई मुक्ति चाहता है? अभी नहीं चाहेंगे, जब 60 के ऊपर होंगे तब चाहेंगे मुक्ति। अभी आपको पाना है कुछ, है ना। मुक्ति जब पाते हैं जब समाज में तनाव आएगा, जब आपको लगेगा लाइफ कुछ नहीं है, अभी आप मुक्ति की बात नहीं करेंगे। तो मुक्ति कब आती है? जब हमारे पास, है ना, आर्थिक समृद्धि होती है। बाद में हम उसका पछतावा देखते हैं कि लाइफ में हम कहाँ थे, कहाँ आए थे। तो समाज में जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो मुक्ति की बात ही नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इन अर्ली सोसाइटी, दैट इज ऋग्वेदा, वी डोंट फाइंड एनी टर्म लाइक सोल एंड सैल्वेशन। जब पैसा आएगा तब तनाव भी आएगा, और जब तनाव आएगा तब आदमी कहेगा आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा ना, और कहाँ आए हैं, कहाँ जाना है। दिस ऑल विल टेक बर्थ आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आयरन। दर्शन भी कब आएगा? जब तनाव आएगा। अर्ली आर्यन रिलीजन बड़ा सिंपल है। दे आर वर्शिपिंग द नेचर गॉड्स। किसकी पूजा कर रहे हैं? बिकॉज नेचर गॉड्स आर लिंक्ड विद देयर इकोनॉमी। पशुपालन में क्या होता है? प्राकृतिक शक्तियों का भय होता है। अर्ली आर्यन पीपल वर वर्शिपिंग द नेचर गॉड्स बिकॉज नेचर गॉड्स वर लिंक्ड विद द इकोनॉमी। पशुपालन में क्या होता है? आप देखें, आप सुबह निकल जाते हैं, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स एंड द इवनिंग यू कम बैक। यू आर स्केयर्ड विद द नेचर। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जिससे हम डरते हैं, हम उसी की पूजा करते हैं। डरने का मतलब जिसकी हमें उपयोगिता होती है, उसी को हम प्रायोरिटी बना लेते हैं। जैसे आप विद्यार्थी हैं, आपको अभी यूपीएससी निकालना है, अभी आप सरस्वती को नंबर 1 पर रखते होंगे, और जिस दिन यूपीएससी निकल जाएगा सरस्वती की फोटो पीछे हो जाएगी, लक्ष्मी सबसे आगे आ जाएगी, है ना। या अभी हनुमान जी भी सामने होंगे आपके, चूँकि आपको डिसिप्लिन से रहना है। तो ह्यूमन नेचर होता है। और फिर 60 के बाद आप विष्णु के पास चले जाएंगे, भैया आपको सब कुछ देख लिया संसार में क्या होता है, मुक्ति चाहिए। तो ये ह्यूमन नेचर होता है, ये इंस्टिंक्ट होता है। बड़े बड़े बैंडेट्स जो होते हैं, डाकू वगैरह देखें आप, वो काली की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, कि उनका रूप थोड़ा सा डरावना होता है। हमको लगता है समाज को डराना है, लगता है ये गॉड का टाइपोलॉजी हमसे मिल रहा है। तो ह्यूमन नेचर होता है, जैसा हमारा पेशा होता है, जैसा हमारी मनोवृत्ति होती है, कहीं ना कहीं से ईश्वर की रचना भी उसको प्रभावित करती है। सॉरी। ऐसे यहाँ देखेंगे आप, अर्ली आर्यन रिलीजन जो है नेचर वर्शिप पर डिपेंड करता है। गॉड्स कौन से टॉप पे है? जो हमको ज़रूरत है उस समय। आप देखें उसमें सबसे ज़्यादा मंत्र किसको दिए गए हैं बताइए? इंद्र को कहा गया। फिर नंबर 2 पे कौन है भाई? इंद्र का मतलब क्या होता है? थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग इन द स्काई। हाँ, इंद्र का तात्पर्य क्या है? प्राकृतिक शक्तियों को देवीय रूप दिया गया है। नेचर फोर्सेस वर गिवन द नेम्स ऑफ द गॉड्स। प्राकृतिक शक्तियों को हमने देवता या देवियाँ बना दिया है। जब वो सुबह सुबह निकलते होंगे कहीं, जब बरसात या आवाज़ आसमान में जब बिजली और कड़कती होगी, अभी भी आप देखें छोटा सा अगर आप पटाखा बजाते हैं, जानवर कितना डर जाते हैं। अभी भी हम लोग, है ना, तो जानवर तभी डर जाते हैं। और उनका पेशा है पशुपालन। तो ह्यूमन नेचर क्या है? जिससे आप डरेंगे उसी की पूजा करेंगे। इंद्र वॉज टॉप इन द प्रायोरिटी। ऑलमोस्ट अराउंड 251 मंत्रास आर एड्रेस्ड टू दिस गॉड। सेकेंड है वरुण, रेन गॉड, सेम लॉजिक। आपका पेशा पशुपालन है। आप देखें अभी भी हल्का बरसात हो जाए, जानवर कहाँ जाते हैं, बहुत दे गॉट स्केयर्ड बाय दिस। और सारी इकोनॉमी उनकी एनिमल पे ही है, कैटल पे ही है। इंद्र हो गया, वरुण, फिर अग्नि देखा आपने, अग्नि का भी कॉन्सेप्ट से, फायर से जानवर बहुत डरता है। तो कुल मिला के देखें ये ह्यूमन। तो हमारा कहने तात्पर्य यह है, आप पढ़ते समय रटिए मत, आप थोड़ा सा उसका लॉजिक लगाइए, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप देखें यहाँ पर, और एक चीज़ और भी है, जब इकोनॉमी सिंपल होती है हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन योर इकोनॉमी इज वेरी सिंपल यू हैव सरप्लस टाइम। उल्टा है, ये जस्ट वाइस वर्सा है। और इकोनॉमी जब हमारी कॉम्प्लेक्स होती है तो टाइम क्राइसिस होती है। जैसे आज है, आज हमारे पास टाइम नहीं है, तभी हम ऑनलाइन बैंकिंग पे आ गए हैं। गुड मॉर्निंग से हम जीएम पे आ गए, जीएन पे आ गए, क्यों? टाइम ही नहीं है भाई। और हो सकता है कि आने वाले 10 साल में हम जी भी ना लगाएं, कहते नहीं लगा, जी अपने आप लगा लीजिए, टाइम ही नहीं है भाई। और पेटीएम एटीएम क्यों आया? आप समझ रहे क्यों आया? क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो कुल मिला के इकोनॉमी जैसी होती है, आदमी की मनोवृत्ति वैसी हो जाती है। वही लॉजिक है यहाँ पर। यहाँ पर टाइम ही टाइम आपके पास है। किसमें? इससे पहले।
तो कल्चर कैसा, कल्चर बड़ा है ना, उसमें क्या है, मल्टीपल बहुत सारे गॉड्स हैं और रिचुअल्स हैं, सेक्रीफाइसेस भी हैं, क्योंकि टाइम है, टाइम कहाँ लगाएंगे, इसमें लगाएंगे आप। अब देखिए आप इसके बाद आ रहे हैं, आफ्टर आ रहे हैं, उसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक के बाद जो भी वैदिक टेक्स्ट है उसको बोला जाता है लेटर वैदिक पीरियड। ऑल ऑफ सडन यू फाइंड सम चेंजेस आर गोइंग ऑन, हम उसको रट लेते हैं कि भाई हो गया होगा, ऐसे ही हो गया होगा। अब इसमें आप कोई भी ले लीजिए, पहले सोसाइटी ले लीजिए, आयरन गॉट डिस्कवर्ड, और नेक्स्ट पार्ट जो है याद रखिए, ये फर्स्ट फेज को बोलते हैं हम अर्ली वैदिक पीरियड और इसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। तो एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं, अगर हमको नहीं भी याद है फिर भी हम लॉजिक लगाएंगे करना क्या, अच्छा ये आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए आफ्टर सोसाइटी के बारे में कहा जा रहा है, सोसाइटी सोशल सिस्टम में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले आप कहेंगे वन सिस्टम आ जाएगा। जब अधिक समाज में जब कोई चीज़ अधिशेष आती है, संघर्ष होता है, और संघर्ष होता है सॉल्यूशन भी होता है। सोसाइटी गॉट डिवाइड इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। अर्लियर यू आर हैविंग नो सरप्लस, ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर, बट नाउ यू हैव सरप्लस। ये ह्यूमन नेचर भी है, जब होगा तो व्यवस्था अपने आप आ जाएगी। इन शॉर्ट यू कैन से नाउ सोसाइटी गॉट स्ट्रेटिफाइड, हैव्स एंड हैव नॉट्स, वीआईपीज एंड नॉन वीआईपीज। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वर्ना सिस्टम वॉज ए सिस्टम विच गॉट इवॉल्व टू एप्रोप्रिएट द सरप्लस। वी कैन से लाइक दिस, एप्रोप्रिएट, हड़पना। पहले नहीं था, क्यों नहीं था, कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए ना बांटने के लिए। भाई अब क्यों भाई, घी और दूध के लिए क्या लड़ेंगे आप, अपना करेंगे अपना जो है। तो सोसाइटी इज इवॉल्विंग ए सिस्टम, बिकॉज सोसाइटी को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, अदरवाइज सोसाइटी में क्या होगा, सोसाइटी वॉज बिटवीन टर्मोइल, टर्मोइल मतलब संघर्ष हो रहा है भाई, सरप्लस आ चुका है। तो वर्ण सिस्टम इज कमिंग, तो वर्ण सिस्टम इज एन ऑफशूट ऑफ आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी। सोसाइटी गॉट स्ट्रेटिफाइड। नाउ सी द पॉलिटी, पॉलिटी में क्या चेंज आएगा, बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, बर्थ ऑफ मॉडर्न स्टेट्स। अब नाम क्या हो गया इसका भाई, पहले जन था, जन के आगे 3 लेटर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जनपद हो गया। और पद का मतलब आपको मालूम है क्या, पैर होता है जहां पर हमारा जन रहता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। द टर्म जना, पॉलिटी में क्या चेंज आ रहा है, पोस्ट आयरन, द बर्थ ऑफ मॉडर्न स्टेट्स एंड द वर्ड जना गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू जनपद, जहां पर हमारा जन ट्राइब रहती है। नाउ दे आर क्लेमिंग दैट दिस लैंड बिलोंग टू देम, दैट इज द किंग। तो पॉलिटी में यू फाइंड फंडामेंटल चेंजेस आर कमिंग, द बर्थ ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल स्टेट्स एंड नाउ इंपीरियलिज्म इज आल्सो कमिंग। जब राज आएगा तो साम्राज्यवाद अपने आप आ जाएगा, राज का विस्तार करिए। और एटोक्रेसी भी आ जाएगी, आपने पढ़ा होगा एटोक्रेसी, जब जब अधिशेष होता है तो एटोक्रेसी भी आ जाती है। सभा समिति का नाम सुना आप लोगों ने, सभा समिति की वैल्यू कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। लॉजिक से भाई आपको मालूम है, आप साम्राज्यवाद आ चुका है, अब राजा अपने आप को बताना चाहता है कि वो जो है ना सुपर हीरो बन चुका है। इसके पहले सुपर हीरो नहीं था, वो सुपर हीरो बन चुका है, वो कहता कुछ नहीं सभा समिति, अब एटोक्रेसी आ चुकी है। इट मीन्स आई गेटिंग पॉइंट। अब यहाँ पर लड़ाई किसके लिए होगी, जानवर के लिए नहीं होगी। वॉर इज गोइंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ लैंड। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से नोटिस कीजिएगा, आयरन बताइए वर्तमान में लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बता दिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इंडिया में कहाँ पाया जाएगा, ईस्ट ही बोला जाएगा भाई, बिहार झारखंड का जो बॉर्डर है। तो अंडरस्टूड है, इंडियन हिस्ट्री में पॉलिटिकल फॉर्मेशन बर्थ ऑफ मॉडर्न स्टेट्स में वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद। सुना होगा आपने 16 महाजनपदों का उदय। तो 6th सेंचुरी BC तक आते आते हमारे भारत के इतिहास में लगभग 16 बड़े बड़े महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन नाम ही उसका महाजनपद। पहले जनपद वो महाजनपद हो गया। और आपको सरप्राइज होगा, आउट ऑफ 16 ऑलमोस्ट अराउंड डजन, 10-11 के आसपास, अराउंड a dozen आर टेकिंग बर्थ इन द ईस्टर्न इंडिया। ईस्ट में लोहा भी है, लकड़ी भी है, तो अपने आप आपको मालूम इकोनॉमी क्या हो जाएगी। तो 16 महाजनपदों में से क्या कारण है कि लगभग 1 दर्जन का जन्म पूर्व में हो रहा है। अंडरस्टूड है, आयरन का सारा गेम आयरन का है, और लोहा वहीं पाया जाता है। तो पॉलिटिक्स विटनेसिंग सच ए स्वीपिंग चेंजेस, इंपीरियलिज्म इज कमिंग। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए इंपीरियलिज्म का उदय ऋग्वैदिक काल में है, लेटर वैदिक काल में, आप लॉजिक से कर लेंगे। आपको कुछ याद ही नहीं करना भाई, आपने हिस्ट्री कैसे पढ़ा है, आपने फोर्स और चेन को जोड़ा है। अब देखिए कल्चर पे आ जाइए, क्योंकि हमने इकोनॉमी पे आ जाइए, थोड़ा इकोनॉमी भी डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी में क्या होगा, सोसाइटी लिखा, पॉलिटी लिखा, इकोनॉमी में देखा। अब आपको मालूम है जब सरप्लस इकोनॉमी होती है तभी नगरों का जन्म होता है। ये बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। नगर का जन्म हो ही नहीं सकता अगर सोसाइटी में इकोनॉमिक सरप्लस नहीं होगा।
तो फर्स्ट कंडीशन फॉर अर्बनाइजेशन इज योर इकोनॉमी शुड हैव सरप्लस इकोनॉमी। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अच्छा एक कन्फ्यूजन यहाँ ये भी होता है, सर फिर इंडस वैली में कैसे हो गया सरप्लस? भाई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सर आप कह रहे हैं वैदिक काल में हो गया सरप्लस। इंडस वैली वाला तो नदी का जादू था, वहाँ भी लोहा तो नहीं है, तभी उसका नाम क्या रखा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ नगर का जन्म तो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है भाई? सभ्यता का जन्म नदी किनारे हुआ, लोहे की जरूरत ही नहीं, जरूरत तो नहीं पड़ेगी, कॉपर से ही काम हो जाएगा। लेकिन जब लोहा आएगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा पूरे इंडिया में, है ना। लोहा मतलब आप एक्सपोर्ट करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्दो आयरन इज मिसिंग, बट सिंस सोसाइटी हैड ट्रिगर्ड अराउंड द इंडस रिवर एंड द सब्सिडरीज हैंस देयर वाज सरप्लस। लेकिन ये स्टेबल सरप्लस, स्टेबल मतलब वो टेम्पररी है, ये स्टेबल है, तभी उसका डिके हो गया। ध्यान दीजिए, नदी सूख गई या नदी का रास्ता बदल गया, सभ्यता गायब हो गई। ये स्टेबल अर्बनाइजेशन होगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, सेकंड अर्बनाइजेशन। भारत के इतिहास में सेकंड अर्बनाइजेशन कब स्टार्ट होता है, लेटर वैदिक पीरियड से मान लेते हैं, और 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते वो क्लाइमेक्स पे होता है। तो आपने क्या देखा, इकोनॉमी बिकेम कॉम्प्लेक्स, इंडिया विटनेस्ड अर्बनाइजेशन, स्टेबल अर्बनाइजेशन। इंडस वैली कैसा है, उसको बोलेंगे टेम्पररी बोल सकते हैं आप, वो नदी का जादू है, ये स्टेबल जादू है। इंडिया विटनेस ए परमानेंट अर्बनाइजेशन, यू कैन यूज दिस वर्ड, परमानेंट अर्बनाइजेशन, वो टेम्पररी अर्बनाइजेशन है। और आपको मालूम है जब अर्बनाइजेशन होगा तो क्या होगा, नए नए मार्केट फोर्सेस का जन्म होगा, नए नए ऑक्यूपेशन का जन्म होगा, और इकोनॉमी सिंपल हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई। और जब नगर बसेंगे, नए नए व्यवसाय आएंगे, अब आपके पास टाइम ज़्यादा है या टाइम की कमी है, कमी हो जाएगी। और आपको मालूम है टाइम कमी होगी तो ह्यूमन सोसाइटी अपने आप इवॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने पेटीएम क्यों निकाला, टाइम ही नहीं है, सेम चीज़ यहाँ होगी, यहाँ भी पेटीएम आ जाएगा। पेटीएम मतलब पेटीएम में से कोई व्यवस्था आ जाएगी या मनी आ जाएगा, बर्थ ऑफ करेंसी। तो बर्थ ऑफ करेंसी इज प्री आयरन और पोस्ट आयरन, क्योंकि इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स हो गई, आपके पास टाइम ही नहीं है। वस्तु विनिमय तो भाई घंटे भर बैठेंगे आप, मनोरंजन करेंगे, तब वस्तु विनिमय होगा, बाद में होगा, क्योंकि टाइम ही टाइम आपके पास है। यहाँ टाइम ही नहीं है आपके पास, आपको चाहिए फास्ट मोड ऑफ एक्सचेंज। इंडिया विटनेस बर्थ ऑफ करेंसी, और जब करेंसी आएगी तो आपको मालूम है मनी लैंडिंग भी आ जाएगी। और जब मनी लैंडिंग आएगी आपको मालूम है हर आदमी अमीर बन जाएगा। आज भी हर आदमी अमीर बन सकता है, बैंक से लोन ले लीजिए, आप बन जाएंगे। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, यू शुड हैव एंटरप्राइजिंग एबिलिटी। अब चाहे विजय माल्या बन जाइए, टाटा बन जाइए, आपके ऊपर है। क्यों भाई, अब तो आपके ऊपर है। तो इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई, फर्स्ट टाइम इंडिया इज विटनेसिंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ये बड़ा एसेंशियल टर्म है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पहली बार आर्थिक उदारीकरण कब हुआ है, तो आप इसको बोल सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड ऑनवर्ड्स। उदारीकरण मतलब हर आदमी अमीर बन सकता है। नगर आ चुके हैं, आप जाइए काम कीजिए, लोन लीजिए मनी साहूकार से, चुका दीजिए, बन जाइए, टाटा बन जाइए आप, या विजय माल्या बन जाइए, वो आपके ऊपर है। तो इकोनॉमी गॉट लिबरलाइज। नगर बसेंगे, एक चीज़ और भी है, जब नगर बसेंगे तो हमारी सोच बदलेगी। इंडिविजुअलिज्म, नए नए वैल्यूज सोसाइटी में आएंगे। इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, धीरे धीरे अब न्यूक्लियर फैमिली बनना स्टार्ट होगा। न्यूक्लियर फैमिली से क्या होता है, व्यक्तिवाद आता है, उदारवाद आता है। और आपको मालूम होगा अगर व्यक्तिवाद नहीं आता तो हम यहाँ पर नहीं होते, समाज बंधा रहता, नई नई सोच नहीं आ पाती। इन शॉर्ट वी कैन से दिस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैड आल्सो गिवन बर्थ टू न्यू वैल्यूज, इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। और शायद यही कारण है समाज के अंदर एक, देखिए कोई चीज़ समाज में आकस्मिक आती है, तनाव भी आता है। पैसा आएगा, तनाव भी आएगा। जैसे आज भी हम देखिए सब कुछ हमारे पास भी तनाव है, तो इंडियन हिस्ट्री में पहली बार तनाव भी आएगा। कौन सा, पैसे वाला तनाव आएगा। जब ये जब पशुपालन था कोई तनाव नहीं था। आपको याद होगा, आप देखिएगा ऋग्वेद में क्या लिखा है। ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं, मंत्र अभी भी हम लोग पूजा क्यों करते हैं, आपको हम लोग पूजा करते हैं, बताइए आप लोग वर्शिप क्यों करते हैं? भाई आप लोग पूजा करते होंगे, नहीं भी करते होंगे तो भी कुछ ना कुछ मानते तो होंगे। तो हम पूजा क्यों करते हैं, वर्शिप नेचर, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों करते हैं आप? सिलेक्शन के लिए करते हैं, यूपीएससी कुछ ना कुछ तो होगा, भाई सिलेक्शन के लिए करते हैं यार, और क्या होगा। इस समय तो स्टूडेंट का यही मोटिव होता है, सिलेक्शन हो जाए अपना। और तो कहीं ना कहीं कुछ मोटिव होता है, हम है ना, वाई वी वर्शिप, सम मेटलिस्टिक मोटिव इज देयर। मंदिर में हम भोग क्यों लगाते हैं, कहीं ना कहीं इसलिए लगाते हैं बजरंग बली इस बार जो है ना सिलेक्शन के बाद 5000 का प्रसाद देंगे, जो भी है। तो कहीं ना ईश्वर को भी हम चाहते हैं, थोड़ा सा लालच देना चाहते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोटिव होता है, मेटलिस्टिक मोटिव होता है उसके पीछे। यहाँ भी देखिए, सुनिएगा यहाँ पर, अब समाज के अंदर पैसा आ गया, नगर आ गया, भटकाव भी आ गया, नगर आ गया, भटकाव भी आ गया। इंडिविजुअलिज्म मतलब ही है भटकाव। यू विल ट्राई टू चैलेंज व्हाट,
ट्रेडिशनल नॉर्म्स, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। जब नगर में आते हैं, हमारे व्यक्तिवाद आता है, तो हम पारंपरिक मूल्यों को चुनौती देते हैं और समाज एक टर्मोइल मतलब एक वह ना भटकाव से गुजर रहा है। और आपको मालूम है, चूँकि गॉड ने एक ऐसा मनुष्य, ऐसा जीव बनाया है जिसके पास आंसर भी आ जाता है, तनाव है, आंसर भी है। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी। सोसाइटी में तनाव हो रहा है, अब एक नया कल्चर आएगा और शायद यही कारण है 6th सेंचुरी BC में हम देखते हैं भारत में एक बहुत बड़ा एक बौद्धिक आंदोलन, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कह सकते हैं, जिसका नायक बुद्धा है, महावीर है। उस समय लगभग 24 ग्रेट थिंकर्स हैं। तो ऐसा क्या जादू हुआ कि 6th सेंचुरी BC में हमको बड़े बड़े पूरी एक सीरीज मिल जाती है, बड़े बड़े थिंकर्स मिल जाते हैं। बुद्ध भी आते हैं, महावीर भी आते हैं, गोशाल भी आते हैं, अजित के सम्मेलन भी आते हैं। तो 6th सेंचुरी BC में इंडिया इज विटनेसिंग इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन। सब इंटरकनेक्टेड, वो कल्चर का पार्ट हो गया। हम कल्चर पे आ गए। तो कल्चर यदि धर्म संस्कृति में हम पाते हैं कि भारत के इतिहास में एक धार्मिक आंदोलन तो नहीं, एक बुद्धिजीवी आंदोलन बोल सकते हैं, बुद्धिजीवी आंदोलन, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट गॉट स्टार्टेड। आपको मालूम है समाज में क्यों चीज़ क्यों आती है? आंसर क्या होता है? समाज के तनाव को कम करना। पैसा रुपया सब आ चुका है, नगर आ चुके हैं, भटकाव आ चुका है, सोसाइटी में टर्मोइल हो रहा है। और आपको मालूम है मनुष्य है तो तनाव है, तो आंसर भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ है? इस मेटलिज्म का जो टेंशन का आंसर बताने के लिए। बुद्ध ने क्या बताया आपको बताइए? बुद्ध का सिद्धांत क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। महावीर ने भी दिया है, पंचव्रत कहा था बाद में। तो कहीं ना कहीं से ये सिद्धांत क्यों आ रहे हैं? सिद्धांत इसलिए आ रहे हैं कि सोसाइटी में तनाव हो रहा है। भाई पहली बार आदमी की जेब में पैसा आया है, तो पैसा आया तो कोई बर्बाद भी हो रहा है, कोई अरबपति बन रहा है, कोई आपको बन रहा है। तो समाज में तनाव हो रहा है, फैमिली ट्रेडिशंस ब्रेकअप हो रहे हैं। तो कैसे हम बैलेंस बना पाएंगे? आंसर कौन बताएगा? बुद्ध बताएंगे, महावीर बताएंगे। और देखिए ये सहयोग नहीं है, इसके पीछे रीजन, इट इज नॉट ए, वी हैव रीजंस फॉर इट। इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन का जन्म कहाँ से होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसका भी आंसर ईस्ट है। बुद्ध भी देखिए ईस्ट से आते हैं, पूरब से आते हैं, महावीर पूरब से आते हैं, गोशाली पूरब से आते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि इस बुद्धिजीवी आंदोलन का जन्म पूर्वी भारत से होता है? अंडरस्टूड है। सबसे पहले मैट्रिस्टिक इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? इकोनॉमी ईस्ट से हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ईस्ट से हो रहा है। तो इस बुद्धिजीवी आंदोलन की नींव पूर्वी भारत से रखी जाती है। और आपको आश्चर्य होगा, इस नींव को रखने वाले, द फाउंडेशन हैज बीन लेड बाय द थिंकर्स कमिंग फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया एंड द लीडर्स ऑफ दिस रेवोल्यूशन बिलोंग टू क्षत्रिय कम्युनिटी। बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, महावीर क्षत्रिय है, गोशाल भी क्षत्रिय है। तो ऐसा क्या कारण है कि इस बुद्धिजीवी आंदोलन की जो कमान है वो एक क्षत्रिय बुद्धिजीवियों के पास है? क्योंकि आपको मालूम है समाज में अगर विचार देना है कितना आसान नहीं है। कम से कम एक आपकी और एक चीज़ और भी सहयोग है, यहाँ पर सहयोग है। जो एक बुद्धिजीवी आंदोलन के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम रॉयल फैमिलीज। मेजॉरिटी आर कमिंग फ्रॉम रॉयल फैमिलीज बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू स्पीक एनीथिंग। उस समय कुछ बोलना तो आसान नहीं है। तो ये सहयोग नहीं, इसके पीछे रीजंस हैं। उस सिस्टम को चैलेंज करना इतना आसान नहीं था। और कुछ इतिहासकारों ने, सम हिस्टोरियंस हैड गिवन ए नेम टू दिस रेवोल्यूशन। अभी हालांकि टेक्स्ट बुक में नहीं आया, कुछ रिसर्चेज में कहा गया है, we can call this revolution, intellectual revolution of 6th century BC as the, thank you भाई, which can call it as the first Renaissance। एक वर्ड है Renaissance, are you aware of the term? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पुनर्जागरण। तो देखिए कल्चर पे हम आ गए। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोहे ने भारत के अंदर एक पुनर्जागरण को जन्म दिया है। तो कभी यूपीएससी इस वर्ड को जोड़ सकती है। हालांकि ये वर्ड ऑप्शन में आ सकता है, हिस्ट्री ऑप्शन में आ चुका। कुछ वर्ड जो क्वेश्चन अच्छे होते हैं ऑप्शन के, कभी कभी जीएस में आ जाते हैं। तो हाउ वी कैन से द 6th सेंचुरी BC इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड एज द फर्स्ट रिनेसा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो वी कैन जस्टिफाई द पॉइंट बिकॉज बताइए रिनेसा का मीनिंग क्या होता है? तो आपने बताया मीनिंग का मतलब हिंदी में तो बता दिया, पुनर्जागरण। जैसे आपने बताया हिस्ट्री क्या होता है, आपने कहा इतिहास कहते हैं। आपने हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास को कहते हैं। तो यहाँ पर उसके आगे का बताइए, इतिहास के आगे का पुनर्जागरण किसे कहते हैं? व्हाट यू मीन बाय रिनेसा? वेरी गुड। और थोड़ा सा और क्लियर, सही है आपका लगभग, थोड़ा सा और 1-2 वर्ड मिसिंग है इसमें। और बताइए, पीछे से बताइए आप लोग। बी वेरी वोकल। यूपीएससी के लिए याद रखिए, जितना आप वोकल होंगे आपने आज जवाब देने में, उतना चूँकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बता दें, बहुत पढ़ना तो नहीं है, लेकिन हाँ जिस दिशा में जाना है उसमें आपको एक्सप्रेसिव बहुत होना चाहिए। एक्सप्रेसिव बहुत, फास्ट आंसर लिखना है। 6 घंटे आप कैसे लिख पाएंगे? इतना
ट्रेमेंडस प्रेशर रहता है। तो थॉट्स जल्दी से कुछ भी बोलिए, गलत सर दो बोलिए, बताइए रिनेसा का मतलब सुना तो होगा आपने, पुनर्जागरण काल, इन्वेंशन डिस्कवरीज। बताइए अगर ये हम रिनेसा भारत के इतिहास में से पहले कब सुना था आपने, कभी किस पीरियड में आता है? नहीं, यूरोप के लिए भारत की बात की जा रही है, सही कहा आपने, भारत के बारे में। आपने राम मोहन दयानंद का नाम सुना होगा, है ना। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, अभी अब तक क्या था सुनिएगा, अभी तक हमारी किताबों में, हिस्ट्री किताबों में क्या लिखा है, भारत के इतिहास में पुनर्जागरण कब आता है? 19वीं सदी में आता है। 19th century in the history of India is called as the century of Renaissance. 19th century means something. What do you mean by 19th century? कब से माना जाएगा? 1800 से 1899. तो when we go for traditional history, we say India has witnessed Renaissance in the 19th century. And who were the godfathers? राम मोहन रॉय, विवेकानंद, दयानंद, उन्होंने समाज को जगाया है। चूंकि इसको हम क्या कहते हैं, भारत के इतिहास में पुनर्जागरण बोलते हैं। ठीक है, यूपीएससी आपसे क्या अपेक्षा करती है? किताबी ज्ञान से बाहर निकलिए, और क्या हमें, क्योंकि वो ब्रिटिश काल है भाई, वो 19th सेंचुरी ब्रिटिश काल ही तो हुआ। हम सारी चीज़ का श्रेय ब्रिटिश काल को देना क्यों चाहते हैं भाई? क्या हमारे इतिहास में कहीं रिनेसा नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शन में आ चुका है। क्या 6th सेंचुरी बीसी को हम रिनेसा कह सकते हैं? और आप रिनेसा मतलब क्या होता है ना, नए विचारों का, हालांकि शाब्दिक का तो होता है जन्म, पुनर्जन्म होता है। डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है रिनेसा का? पुनर्जन्म। लेकिन हमें डिक्शनरी मीनिंग तो देखना नहीं है, हमको अप्लाइड मीनिंग देखना है। तो रिनेसा मतलब होता है बर्थ ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रेशनलिज्म, तर्कवाद, नए सिद्धांत, आइडियाज का जन्म ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक एंड रीजंस, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द पास्ट, तभी तो मतलब पुनर्जागरण। बर्थ ऑफ न्यू आइडियाज वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड रीजन, इंस्पिरेशन फ्रॉम द पास्ट। तो हम इसको क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारे यहाँ वैदिक काल बीत चुका है, धर्म दर्शन आ चुका है, तो कहीं ना कहीं हमने उसको थोड़ा सा इंस्पायर्ड होकर हमने चेंज किया है। और बुद्ध और महावीर ने तर्क की बात करी है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया। मनी की आप देखें, सबने बताया है कि पैसा उतना ही बटोरिए जितना जरूरत हो, हमको लॉजिक बताया जा रहा है, और हम पैसे के साथ संतुलन बनाने के प्रयास कर रहे हैं। आज भी देखिए वही तनाव, वही चीज़ है। तो रेनेसा का मतलब क्या होता है? समाज को जगाना, समाज के तनाव को कम करना। कैसे? लॉजिक और रीजन से। तो रेनेसा इज अ थॉट विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजंस टू प्रोवाइड ऑर्डर इन सोसाइटी, सोसाइटी में बैलेंस बनाने के लिए। तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी भारत के इतिहास में वी कैन कॉल 6th सेंचुरी बीसी एज द फर्स्ट रेनेसा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा इसमें आप और डीपली सोचेंगे इसको, तो हम देखिए कैसे कह सकते हैं 6th सेंचुरी बीसी। अभी आपने देखा, इसको हम बोल सकते हैं भारत के इतिहास में पहला रिनेसा बोल सकते हैं, बिकॉज बुद्धा एंड महावीरा आर ट्राइंग टू गिव एन आंसर हाउ यू कैन लिव ए बैलेंस लाइफ विद द मनी इकोनॉमी। पहली बार मनी आया है भारत में, कैसे आप मनी और शहर आया है, भटकाव भी आया है, इन्होंने आंसर बताया है लॉजिक और रीजन से। फर्स्ट रिनेसा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकेंड रिनेसा बोलेंगे हम 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी किसे बोलेंगे आप? कब से स्टार्ट होगा भाई? आपको इस समय भारत के इतिहास में क्या परिवर्तन आ रहा है बताइए? 13th सेंचुरी में भारत का इतिहास कैसे बदल रहा है? आपको मालूम होगा मोहम्मद घोरी का इन्वेजन हो चुका है 1192-94 में, 1192-94 में हो चुका है, और भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अल्पसंख्यक इस्लामिक राज की स्थापना हुई, माइनॉरिटी इस्लामिक स्टेट। ए माइनॉरिटी इस्लामिक स्टेट इज गोइंग टू गवर्न हिंदू मेजोरिटी। ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, जब तक समाज में को जगाया ना जाए, बैलेंस ना बनाया जाए। तो यहाँ पर हम कौन सा मूवमेंट देखते हैं? आपने सुना होगा, किताब में लिखा होगा, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो उसको भी हम कैसे कह सकते हैं? वो भारत के इतिहास का सेकंड रिनेसा हो जाता है। और रिनेसा कब आता है? जब समाज में तनाव होता है। रिनेसा कब आता है? जब समाज में टेंशन होता है। ये हमारी हिस्ट्री की पहचान है, ये हमारी इंडियन हिस्ट्री का बड़ा यूनिक एस्पेक्ट है। इंडियन हिस्ट्री इज यूनिक बिकॉज वेन एवर वी हैव डिस्टर्बेंसेस, चाहे वो पैसे का डिस्टर्बेंसेस हो। 6th सेंचुरी में डिस्टर्बेंस कैसा? अर्बनाइजेशन आया है, मनी आ गया है, टेंशन हो गया है, आंसर आ गया कैसे रहना, बुद्ध ने बता दिया। यहाँ पर क्या डिस्टर्बेंस है? माइनॉरिटी स्टेट आ गया है, मेजॉरिटी गवर्न करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। भक्ति सूफी आंदोलन क्या बताया आपने? आपको मालूम, कबीर नानक ने क्या बताया, रामानुज ने क्या बताया, सबको बताया। ईश्वर एक है, मनुष्य एक है। तो मोटिव क्या है? कैसे आप समाज को जोड़ा जाए अल्पसंख्यक समाज के साथ, वो गवर्न कर रहा है। ए माइनॉरिटी इज गवर्निंग मेजॉरिटी, उस समय ये इम्पॉसिबल है। एक कल्चर गायब हो जाएगा अगर भक्ति ये आंदोलन नहीं होता। तो सेकंड रिनेसा को अभी हमने फेस किया विदाउट ब्रेकडाउन, और आप देखें आज भी कल्चर वही है। तो इंडियन कल्चर यूनिक क्या, वो समय के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। हमारे यहाँ हमेशा रिनेसा हो जाता है, सेकंड रिनेसा।
और थर्ड रेनेसां जो हमने बुक में पढ़ते हैं, हम एक ही को जानते हैं। हम कहते हैं भारत के इतिहास में एक ही आया है, बट आप यूपीएससी को बता दीजिए कि साहब एक नहीं आया, तीन तीन आ चुके हैं। थर्ड रेनेसां कब आता है भाई? इसको हम R3 बोल रहे हैं, R1 R2 R3। फर्स्ट रेनेसां 6th सेंचुरी BC, सेकेंड रेनेसां 13th सेंचुरी BC AD सॉरी, एंड थर्ड रेनेसां 19th सेंचुरी। इसको R3 बोला गया है ना, शॉर्ट में लिखा गया भाई। इसके गॉडफादर कौन थे? राम मोहन रॉय। स्टार्ट राम मोहन ने किया, फिर दयानंद, सीरीज ऑफ थिंकर्स हैं और सबके पीछे कारण भी है, ध्यान दीजिएगा। पहले वाले का कारण आपको मालूम ही है, मुद्रा व्यवस्था, नगर व्यवस्था, तनाव। सेकंड, अल्पसंख्यक शासन कर रहा है, माइनॉरिटी क्लास इज गवर्निंग मेजॉरिटी। इम्पॉसिबल है जब तक भाईचारा और बंधुत्व की भावना ना आए। थर्ड में प्रॉब्लम क्या? ये थर्ड वाला तो बड़ा खतरनाक टाइप का है, मतलब बहुत चैलेंजिंग रेनेसां है। यहाँ पर एक इंग्लिश कंपनी ने भारत को जीत लिया है, जीता ही नहीं है। इससे पहले आक्रमण कौन करता था? राजा लोग करते थे। ये कंपनी का आक्रमण है। प्लासी बक्सर आपने पढ़ा सुना होगा। और कब हुआ प्लासी बक्सर बताइए? कुछ वर्ष बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो याद होने चाहिए, आप तारीख भी याद होनी चाहिए, पढ़ेंगे आप आगे। तो ये ईयर टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, प्लासी एंड बक्सर। और यहाँ से भारत का इतिहास एक नए टर्निंग पॉइंट पर आएगा। आधुनिक इतिहास धीरे स्टार्ट हो जाएगा। और इंग्लिश कंपनी आपने पढ़ा हो, कब भारत में आगमन कब हुआ था? 1608 में हुआ था आगमन, यहाँ पर हुआ है। और प्लासी का युद्ध कब हो रहा आपने देखा? 150 साल बाद, 150 ईयर्स। तो अभी आगे पढ़ेंगे तो किस पे फिर हम लोग चर्चा करेंगे, तो कुछ और चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे फिर ना। तो शॉर्ट में सुन लीजिए बस, ये प्लासी बक्सर हो जाता है। फिर एक इंग्लिश कंपनी, ये भारत के इतिहास में पहली अजूबी घटना हो रही है। एक कंपनी भारत में राज करने जा रही है, और कंपनी का नाम ही आप समझ रहे हैं कि कंपनी का मतलब उपनिवेशवाद का सिद्धांत आ जाएगा। उपनिवेश का कॉलोनिज्म आप सुना है ना, कॉलोनिज्म। ये हिस्ट्री क्या है? आप कहते हैं भारत ब्रिटेन का राज नहीं बना है, ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया है। पहली बार एक वर्ड आता है उपनिवेश। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप मीनिंग देखेंगे, इकोनॉमिक जनरेशन टेरिटरीज, आर्थिक उत्पादन के केंद्र। भारत ब्रिटेन का राज नहीं है, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। मतलब उसको इसे संभाला गया पैसा निकालने के लिए। उसके पीछे कारण क्या, आप बाद में पढ़ेंगे, संक्षेप में सुन लीजिए। इन 150 साल में क्या हुआ था? क्यों भाई 150 ईयर से कंपनी का भारत में आगमन, प्लासी का युद्ध। अच्छा, ये क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा घबराइएगा मत, ये थोड़ा समझाने के लिए है, तो पर्पस वो नहीं है, क्लास ना फॉर्मल क्लास नहीं हो रही। तो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल सुनिएगा यहाँ पर। कंपनी का आगमन ना, अराइवल कब हुआ? 1608। विक्ट्री एट प्लासी एंड बक्सर सामने लिखा हुआ है। Can you tell me, in this 150 years, the trade and commerce which India was having with the Britain was in favor of India or favor of Britain? सोच के बताइएगा। हाँ, फेवर ऑफ इंडिया बोला जाएगा। पहले की बात हो रही है। इन 150 सालों में, प्लासी के पहले की बात हो रही है। ये 150 ईयर्स है, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स है। 150 साल बड़ा लंबा काल होता है। इंडिया वॉज हैविंग ए फेवरेबल ट्रेड विद द वेस्ट एंड ब्रिटेन। कंपनी व्यापार तो कर रही है, फायदा लेकिन भारत को हो रहा है। भाई सूती, आपको मालूम होगा, लघु कुटीर उद्योग जो होते हैं ये पॉपुलेशन बेस्ड उद्योग होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं पॉपुलेशन बेस्ड होते हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा तो आप नंबर 1 पे हो ही जाएंगे। तो कंपनी इज कैरिंग द इंडियन टेक्सटाइल, स्पाइसेस, आइवरीज, वट एवर वी आर हैविंग, उसको यूरोप में बेच रही है। लेकिन ये ट्रेड भारत के पक्ष में बहुत ज़्यादा है। और आपको आश्चर्य होगा कि इस व्यापार के लगभग 100 साल बाद, हालांकि 1702 है, फिर भी आप 100 साल बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट आफ्टर 100 ईयर्स पार्लियामेंट में एक अधिवेशन बुलाया जाता है इसी मुद्दे पर। तो कंपनी को जब भारत में व्यापार वाणिज्य करते हुए 100 साल बीत जाता है। कंपनी का व्यापार कैसे कर रही थी? भारत के सूती वस्त्र, मसाले और जो भी उत्पाद हैं लघु कुटीर उद्योग के, उनको खरीदने के लिए दे वर ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर। वो भारत में सोना चांदी के बदले ये सब मसाले, कपड़े खरीदते थे। और आप इमेजिन कीजिए इन 100 सालों में भारत में कितना सोना चांदी आ गया होगा। तो दे वर परचेजिंग नॉट ऑफ करेंसी, वो गोल्ड और सिल्वर के माध्यम से खरीदते थे। तो संसद में एक सत्र बुलाया गया है, उसमें चर्चा का विषय क्या है कि ये क्या हो रहा है भाई, 100 साल बीत चुके हैं, अब आगे क्या होना है। आपको मालूम है ना, संसद में चर्चा होती है, कंपनी को व्यापार करने के लिए भेजा गया भारत में, ये तो लेकिन हमारे देश से सोना चांदी जा रहा है। तो आपको आश्चर्य होगा, पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पारित किया है, ऐसा करते हैं कि इस पर आयात कर लगा देते हैं। तो फर्स्ट टाइम इन द ब्रिटिश हिस्ट्री द पार्लियामेंट हैड पास अ रेजोल्यूशन
टू इम्पोज हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द इंडियन इम्पोर्ट्स। उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए इम्पोर्ट हो जाएगा, हमारे लिए एक्सपोर्ट, हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहली बार संसद ने इस पर आयात कर लगाया। लेकिन आपको मालूम होगा आयात कर कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, भारत को जीत लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, उसके 50 साल बाद 52 साल बाद भारत जीत लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्लासी की विजय आकस्मिक विजय नहीं है, इट इज़ नॉट ए रैंडम विक्ट्री, वो बाकायदा सब प्लान है। तो ठीक है, काम की चीज़ पे आइए। देखिए इसका द विक्ट्री ऑफ इंग्लिश कंपनी वाज ए यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज फर्स्ट टाइम इंडिया वाज नॉट वॉन बाय द किंग, इट वाज वॉन बाय कंपनी विच वाज इन इंडिया फॉर द लास्ट 150 ईयर्स एंड हैड ड्रेन्ड इट्स वेल्थ इन इंडिया। अब उसकी भरपाई कैसे करेंगे, उनको मालूम है कैसे करना है। इस देश ने हमारा बहुत सोना चांदी लिया है, भारत ने, इसका हम शोषण अच्छी तरह करेंगे। और आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कंपनी धीरे से भारत के संपूर्ण व्यापार और वाणिज्य पर मोनोपोली करती है, अधिकार रखती है, और लघु कुटीर उद्योग चाहे कृषि और सबका शोषण स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी गॉट डिप्राइव, एग्रीकल्चर, एसएसआई, भारत एक कृषि प्रधान देश था, वो भी बहुत दरिद्र हो जाएगा। तो चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, भूमि हमारी अनुपजाऊ हो जाएगी। पढ़ेंगे आप आगे जाकर। तो कुल मिला के संक्षेप में कहा जाए, इकोनॉमी भारत की ऋण हो जाती है, खराब कर दी जाती है। इसके अलावा पॉलिटी भी आपको मालूम होगा, पॉलिटी भी आपने खो दिया। जब प्लासी बक्सर के बाद क्या होता है, इंग्लिश कंपनी बिकेम द मास्टर ऑफ इंडिया। तो सी हाउ वी कैन से लाइक दिस विक्ट्री इज यूनिक इन द वे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंग्लिश कंपनी हैड इन्वेंटेड इंडिया। इसके पहले के आक्रमण में आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भारत में जो भी आक्रमण हुए हैं उसकी विशेषता क्या रही है, उन सबका भारतीयकरण हो गया। चाहे प्राचीन काल में देखें आप, मध्यकाल में देखें, कम से कम मध्यकाल में भी जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए उनका भी कम से कम भौगोलिक भारतीयकरण हो गया। बाबर की पहचान भारत जुड़ जाती है। तो एंशिएंट मेडिवल में क्या देखते हैं आप, जो भी आक्रमणकारी आते हैं, वट एवर इन्वेडर्स हैड केम इन द एंशिएंट मेडिवल इंडिया दे गॉट इंडियनाइज्ड। इन एंशिएंट इंडिया में क्या होता है, एंशिएंट प्राचीन की बात की जाए, दे वर इंडियनाइज्ड होलिस्टिकली, होलिस्टिक मतलब कल्चर से भी और ज्योग्राफिकली भी। मेडिवल में क्या होता है, दे गॉट इंडियनाइज्ड ज्योग्राफिकली ऑल्दो दे मेंटेन देयर इस्लामिक कल्चर। बट ये बड़े खतरनाक आक्रमणकारी है कंपनी, इनका उद्देश्य तो भारत का शोषण करना है। दे नेवर गॉट इंडियनाइज्ड नाइदर ज्योग्राफिकली, नाइदर कल्चरली, नाइदर पॉलिटिकली। इवन देन दे वर गवर्निंग इंडिया। क्यों गवर्न कर रहे हैं, उपनिवेश का शोषण करना है भाई। गवर्न तो कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य गवर्न करना नहीं है। तो बड़ा अजीब सी चीज़ है, आप राज्य कर रहे हैं लेकिन आपका उद्देश्य राज करना नहीं है, बस वो एक माध्यम है, वो मीन्स है। गवर्नेंस वॉज ए मीन टू ड्रेन द वेल्थ ऑफ इंडिया। इंग्लिश कंपनी गवर्न क्यों कर रही है, भाई पैसा निकालना है। 150 साल के इतिहास में कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जाए, दिस विक्ट्री ऑफ दिस प्लासी एंड बक्सर वाज अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज इंडिया लॉस्ट इट्स पॉलिटी। हमने अपनी राज्य व्यवस्था खो दी, इकोनॉमी भी खो दी। और थर्ड चीज़ क्या है, हमारे ऊपर ईसाई धर्म का प्रचार होगा, कल्चर भी इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो ये आक्रमण बड़ा खतरनाक आक्रमण है। हमारी अर्थव्यवस्था भी खो गई, हमारी राज्य व्यवस्था खो गई, और हमारे पास सांस्कृतिक अतिक्रमण, कल्चरल इंक्रोचमेंट भी हो रहा है। इससे जघन्य आक्रमण क्या होगा, इसका तो ये रिनेसा थोड़ा सा पॉपुलर ज़्यादा होगा। और उसकी शुरुआत होती है 19वीं सेंचुरी में। इसको R3 बोला गया, राम मोहन रॉय को माना जाता है जन्मदाता माना जाता है। फिर हमें सीरीज और मिलता है, और शायद यही कारण है भारतीय संस्कृति का क्षय क्यों नहीं हुआ। यूपीएससी ने आज से 3 या 4 साल 2016 या 17 में पूछा था ये, और इसी का रूप एक क्वेश्चन एक बार 18 में भी आया है। वाई इंडियन कल्चर हैज़ नॉट डिकेड फॉर द लास्ट 5000 ईयर्स एंड अदर कंटेम्प्रेरी कल्चर्स हैड कोलैप्स्ड। क्या कारण है भारतीय संस्कृति का क्षय पिछले 5-8 वर्षों में नहीं हुआ है, जबकि समकालीन संस्कृतियाँ सब म्यूजियम में है समय। कारण बड़ा सिंपल सा है, हमारे यहाँ जब भी तनाव होता है एक आंसर आ जाता है, इसको हम पुनर्जागरण कहते हैं। इसको आप आंसर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने, ये पुनर्जागरण है, और यहाँ पर एक बड़ी चीज़ निकल के आती है। इसी पुनर्जागरण ने आपको वो चीज़ दिया है। पुनर्जागरण क्यों होता है, आपको मालूम है क्यों होता है? सिंपल सा आंसर है, सोसाइटी में एक स्टेबल करना, सोसाइटी को स्टेबलाइज करना। यहाँ पर आपको ध्यान देंगे, आपको आश्चर्य होगा। एक क्वेश्चन पूछा जरा, बताइए स्वराज शब्द का जन्मदाता कौन था? हु हैड कॉइन्ड द वर्ड स्वराज? विकल्प आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन समझ गए आप? हु हैड कॉइन्ड द वर्ड स्वराज? पहला विकल्प आपके सामने जो है तिलक है, फिर विवेकानंद है, और दयानंद है, और चौथा इनमें से कोई नहीं, दयानंद है। और कोई आंसर है भाई? दयानंद ही होगा।
तिलक ने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, दयानंद सही है आपका। और लगभग कब की बात है? 1870s। 1870s में हिंदी के शब्दकोश में पहली बार एक शब्द आ रहा है स्वराज। आप ध्यान दीजिए, जो ये बुद्धिजीवी लोग होते हैं, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, ये समाज के तनाव को पढ़ते हैं, उसका उत्तर बताते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तनाव किस बात का है? ब्रिटिश काल में ये तो बड़ा जघन आक्रमण हुआ भाई, आपकी अर्थव्यवस्था खो गई है, राजव्यवस्था खो गई है। तो इन्होंने एक नया शब्द बनाया दयानंद ने 1870s के दशक में, स्वराज बनाया, शासन में भागीदारी। ऐसे एक शब्द का निर्माण यहाँ पुनर्जागरण में और हुआ, उसका नाम है स्वदेशी। पहली बार इस शब्द का प्रयोग जो है मराठी या बॉम्बे के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख ने किया था 1870s में। इसके पीछे भी कारण क्या है? हमने अपनी अर्थव्यवस्था खो दी है, तो हमको स्वदेशी करना, मतलब हमको अपने उद्योगों को फिर से जीवित करना है। तो कहीं ना कहीं इस कल्चर, इस पुनर्जागरण ने हमारी संस्कृति को बचा लिया। तो भारतीय संस्कृति का क्षय क्यों नहीं हो पाया? सीधा जवाब है कि भारतीय संस्कृति एक अजीबी संस्कृति है विश्व के इतिहास में। इसमें जब भी कोई अतिक्रमण होता है, ये अपने आप को उस पथी से निकाल लेती है, अडेप्ट कर लेती है। और संस्कृतियों में ये गुण नहीं है। अदर कल्चर्स वर नॉट हैविंग दीज एलिमेंट्स। तो वी कैन से लाइक दिस, Indian culture is unique in the way it has the elements of adaptability and flexibility. Adaptability and flexibility. And we have witnessed 3 renaissances. So whenever we have challenges, we have answers also. That is why we had not decayed. तो कुल मिला के आप समझ गए कि ये 3 रेनेसा होते हैं और इसको आप ऐसे जोड़ सकते थे। तो ठीक है, हमने इसको चर्चा कर लिया इसमें। अब हम एंशिएंट को देखा आपने। अच्छा, स्पीड को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कुछ स्पीड ठीक है, स्लो करना है या ठीक है? ठीक है, ये आदत है। हमने 2002 से पढ़ाना स्टार्ट किया था लखनऊ से। हम बेसिकली लखनऊ को बिलोंग करते हैं और ये 18 साल में स्पीड इतनी स्लो हुई है भैया ना। कुछ लोग कहते हैं सर इतना स्पीड है तो पहले लेक्चर कैसा होगा? वास्तव में पहला लेक्चर तो बड़ा चैलेंजिंग था विद्यार्थियों के लिए। लखनऊ में हमने उस समय लखनऊ में मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, तो कोचिंग में पहली बार मैंने क्लास लिया तो मैनेजमेंट ने कहा सर लेक्चर तो बहुत अच्छा है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। हम 2 मिनट तो हंसते लगे। हमने कहा कौन सा लेक्चर है भैया? लेक्चर तो अच्छा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने अगले दिन वहाँ पर टेप रिकॉर्डर रखवाया था और मैं खुद सरप्राइज करा था मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मतलब आवाज़ इतने फास्ट था, क्योंकि खुद विद्यार्थी थे। यूपीएससी का मेरा लास्ट 2001 में पूरा हुआ था। तो उस समय क्या था, जो शरीर में भरा उसको पूरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो निकलता चला गया। लेकिन अब बहुत धीरे कर दिया। मैं कहा अब दिक्कत नहीं आ रही हो? क्यों भाई, 18 साल हो चुका है, दिक्कत तो नहीं है? पीछे बताइए, कुछ स्पीड स्लो किया जाए स्लो? अच्छा ठीक है, करते हैं भाई। तो धीरे धीरे अभी का पहला दिन है, आप समझ सकते हैं। एक एसेंट भी होता है, जब आप चीज़ों को पकड़ना सीखते हैं तो धीरे धीरे आप उसमें एडजस्ट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चर्चा की गई कैसे पढ़ना चाहिए। अब हम मॉडर्न इंडिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये तो एंशिएंट का एग्जाम्पल लिया गया। तो कुल मिला के इतिहास क्या होता है? क्रमवार संकलन ही नहीं है, वो तो है ही। खैर यूपीएससी में कौन सा इतिहास देखा जा रहा है? परिवर्तन के बल, फोर्सेज ऑफ चेंजेस, फोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट। कैसे इसको जोड़ेंगे, इसको आप जोड़िए। और किस चैप्टर में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको जोड़ लेंगे। आप जोड़ना सीख जाएंगे, अभ्यास करें, जी सीख जाएंगे। आप विश्वास करें, क्वेश्चन कोई भी हो कम से कम आप 100 शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कैसे लिखना है। जैसे आप देखा लोहे को हमने कैसे जोड़ा है, आयरन के बेस पे हमने लगभग पूरा एंशिएंट और क्या नाम है ये ऋग्वैदिक पीरियड, लेटरवैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड जोड़ दिया है। अब हम इसमें आते हैं ब्रिटिश इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में आते हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री में आते हैं। इसमें एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आपके सामने है। लगभग कितने साल का इतिहास है बताइए, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, लगभग कितने साल का है? अप्रोक्सीमेट बताइए। 200 है ना, 190 है भाई। इसको हम अगर प्लासी से मान लें तो यहाँ से मान सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 200 ईयर्स है। 190 ईयर्स है, 200 ईयर्स। और यूपीएससी में आपको मालूम होगा, प्रीलिम्स में भी अच्छा इस बार 19 क्वेश्चन आए थे, 19 क्वेश्चन थे, 19 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन पूरा इससे थे, कोई डाउट नहीं, लगभग 50% हो जाता है। और मेंस में भी 6 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बड़ा हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा हैवी शेयर है, 50% शेयर है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। उसके पीछे लॉजिक क्या बताइए, रीज़न क्या है? यूपीएससी ने इसको वेटेज क्यों दे रखा है? 50% के आसपास है भाई। एंशिएंट भी है, मेडिवल भी है। जीएस की बात की जा रही है, ऑप्शन की बात तो नहीं की जा रही। जो ऑप्शन सब पढ़ते हैं आप मालूम, एंशिएंट पढ़ेंगे, मेडिवल पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब तो खैर फिर भी 10 हो गया। आज से जो है जब पैटर्न नहीं बदला गया था, ये 2013-12 से पहले की बात हो रही है, तो उस समय तो पूरा मॉडर्न ही आती थी। 2-4 क्वेश्चन एंशिएंट मेडिवल से आते थे। बताइए रीज़न क्या हो सकता है?
अगर 19 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 9-10 क्वेश्चन तो आना ही आना है। 50% हम 200 साल को देते हैं, 50% हम 200 साल को दे रहे हैं। मेडिकल हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? लगभग 1200 से मान लीजिए ना, 1200 से मान लीजिए, लगभग प्लासी तक। कितने साल हो गए भाई? 600 साल हो जाते हैं, 550-600 साल मान लीजिए। और एंशिएंट आपको मालूम ही है, अगर आप इंडस वैली से स्टार्ट करेंगे तो भी ज़्यादा हो जाता है। इंडस वैली से भी मानते हैं रोमन हिस्ट्री। इंडस वैली कहाँ से स्टार्ट होती है? ये BC है भाई। और ये कितने साल हो जाते हैं? जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा। लास्ट वाला ही AD है। तो ये एंशिएंट का हम एक फॉर्मल हिस्ट्री, BC में हम उल्टा चलते हैं। BC मतलब 2500 BC है। हाँ, तो ये आप 37 ऑलमोस्ट, हर एक राउंड फिगर में आप 48 बोल सकते हैं, जो भी है। तो अगर कालक्रम के हिसाब से देखें तो कायदे में UPSC को यहाँ से ज़्यादा पूछना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कहीं ना कहीं आज जो हमारा स्ट्रक्चर है पूरा वो उसी की देन है। तो ये अप्लाइड भी है कि हमें जो वर्तमान में है, तो इसमें है ना, तो आप समझ गए रेशियो ऐसा बटा हुआ जो अप्लाइड से हमें स्कीम। आज पूरा स्ट्रक्चर भारत का यही है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जुडिशल स्ट्रक्चर, इवन एजुकेशन स्ट्रक्चर, सब वही तो है, ब्रिटिश जो लेके आए। तो ये रीज़न है। तो संक्षेप में देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते समय आपके मन में क्या चीज़ आनी चाहिए? द होल मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज रिवॉल्विंग इनटू दीज 3 सर्कल्स। पूरा इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो जब पढ़ते समय इस पर्सपेक्टिव को बिल्कुल क्लियर रखिए। आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन इसलिए सही हो जाएंगे, आपको ये मालूम है पूरा ये इतिहास 3 सर्कल में घूम रहा है। फर्स्ट, आपको मालूम है इंडिया अब उपनिवेश बन चुका है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। तो जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें तो आपको 3 चीज़ का ओरिएंटेशन क्लियर होगा। तो हमारा कहना है, भले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी 2-3 क्वेश्चन इसके सही हो जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट मालूम है इसका ये क्या होता है, आप लॉजिक लगाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट, पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलोनियलिज्म, हिंदी में उपनिवेशवाद। और इसका आपको मालूम है कि न्यूटन का 3rd लॉ क्या होता है भाई? एक्शन हैज़ इक्वल अपोजिट रिएक्शन। वो तो न्यूटन्स लॉ होता है, वो तो साइंस का नियम है, हिस्ट्री का नियम है। ये अब मनुष्य का जो है प्रतिक्रिया कैसी होती है, वो डबल ट्रिपल भी हो सकती है। न्यूटन कहता है कि प्रत्येक क्रिया की ना बराबर और इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। हिस्ट्री में क्या होगा? वो डबल और ट्रिपल भी हो सकता है। ये मानव इतिहास है। तो यहाँ क्या होगा? रिएक्शन देखिएगा, इसकी कॉलोनिज्म है, इसका प्रतिक्रिया होगी। ये क्या लिखा भाई? और जैसे एक मूवी में क्या होता है, हर मूवी में आपके हीरो भी होता है, विलेन भी होता है। कोई मूवी ऐसी नहीं देखोगे जहाँ विलेन ना हो। क्यों भाई? आप देखें, शायद हो सकता है आगे बन जाए, लेकिन मूवी में वैसा हीरो भी होगा, विलेन। तो वही है, भारत का इतिहास एक ऐसा है, हीरो भी होता है, विलेन भी होता है। जब हीरो, नेशनलिज्म को हम हीरो कह सकते हैं, तो किसका उद्देश्य क्या है? देश को जोड़ना, आज़ाद कराना। इसका मोटिव क्या है? यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। साथ में विलेन भी आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, इसकी हिंदी क्या होती है भाई? नहीं, संप्रदायवाद। इसको हम फ्रीडम मूवमेंट का हीरो बोल सकते हैं। इसका उद्देश्य है भारत को बांटना है, उसका उद्देश्य है भारत को जोड़ना और आज़ाद करना। बहुत, इसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। और इतिहास में कुछ नहीं, जो भी आप पढ़ते हैं 200 साल में, आप इसको पढ़ते हैं, आप इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, जो भी होगा इसका सब पार्ट्स होगा। तो अगर माइंड में होता कि हम लोग हिस्ट्री में कैसे पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में अक्सर हमने देखा कि लोग गवर्नर जनरल को पढ़ते चले जाते हैं। सारे कार्यकाल पढ़ लिए आपने, या आपने कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ लिए, या आपने सारे आंदोलन पढ़ लिए। लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसको पढ़ने से शायद आप 2-3 क्वेश्चन सही कर लेंगे, लेकिन अगर आपने इस पर्सपेक्टिव से पढ़ा है तो क्वेश्चन में अगर डाउट भी होता तो भी आप सही कर ले जाते हैं। आपको मालूम है क्या पढ़ना है इसमें। ये क्रिया है, और ये आपने पढ़ाई है। न्यूटन्स लॉ कहता है कि इक्वल होता है, यहाँ पर डबल ट्रिपल हो जाता है। ये प्रतिक्रियाएं है, राष्ट्रवाद है, संप्रदायवाद। और ये दुर्भाग्य क्या है, यहाँ पर हीरो का विलन का जन्म एक साथ होता है। राष्ट्रवाद भी 19वीं सदी के अंत में आता है भाई। कांग्रेस कब बनती है? 85 के आसपास बनती है, एंड ऑफ 19th सेंचुरी। और ये भी सहयोग से उसी के आसपास है। दोनों का जन्म दुर्भाग्यवश, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द फोर्सेज ऑफ नेशनलिज्म एंड फोर्सेज ऑफ कम्युनिज्म हैड टेकन बर्थ साइमल्टेनियसली।
तो मॉडर्न हिस्ट्री में पहली चीज माइंड में सेट करिए, हम पढ़ते क्या, हम इन्हीं तीनों चीज़ों का विस्तार पढ़ते हैं। ये कौन सा इतिहास है, अंग्रेज भारत में क्या कर रहे हैं। भाई आपको मालूम उपनिवेश का मतलब ही है, शाब्दिक अर्थ क्या है, इकोनॉमिक जनरेशन टेरिटरीज। व्हाट इज कॉलोनिज्म? इकोनॉमिक जनरेशन टेरिटरीज, आर्थिक उत्पादन के केंद्र, जिसका उद्देश्य क्या होता है, मात्र देश के आर्थिक हितों की पूर्ति करना, टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मदर कंट्री, ये बोला जाता है। और तो यहां पर कॉलोनिज्म को आप देखेंगे, अंग्रेजों की पूरे 200 साल के इतिहास में जो भी पॉलिसी बनेगी उसका उद्देश्य, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज क्वेश्चन इज अराइज whether you can justify Dalhousie was an architect of modern India। ये यूपीएससी ने जीएस में क्वेश्चन पूछा है आज से 4-5 साल पहले, फिर से रिपीट करते हैं, कैन यू जस्टिफाई और कैन यू आर यू एग्री विद द पॉइंट दैट डलहौजी वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन समझ गए आप? डलहौजी को क्या भारत, आधुनिक भारत का निर्माता माना जा सकता है? देखिए हिस्ट्री में एक चीज़ याद रखिए, हिस्ट्री विज्ञान नहीं है। विज्ञान में क्या होता है, आपने कहा फोर्स बराबर एम ए होता है, या आपने कहा इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है, जो भी है। गणित, इतिहास गणित भी नहीं, गणित में क्या होता है, एक ही उत्तर होता है कि भैया हाँ होगा, हाँ नहीं। इतिहास में याद रखिए, यहाँ पर हाँ भी बोलना है, नहीं भी बोलना है, क्योंकि इतिहास क्या होता है, मानव का अध्ययन मानव द्वारा, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बाय ह्यूमन। ह्यूमन बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वी कैन नॉट से दिस इज द आंसर, तो जस्ट माइंड इट। यूपीएससी के आंसर राइटिंग में कभी भी कंक्लूजन की बात की जा रही, कंक्लूजन में कभी भी, निष्कर्ष में कभी भी क्लोज्ड एंडेड आंसर मत दीजिए। आंसर आपका हमेशा ओपन एंडेड होना चाहिए, उसमें सुधार के स्कोप होना चाहिए। यू शुड नेवर हैव ए स्वीपिंग स्टेटमेंट, आपको ये नहीं कहना चाहिए यही होगा, आप कभी ये नहीं बोल सकते। इतिहास है भाई, आप कहेंगे हाँ संभावना इसकी लगती है, ये भी हो सकता है, तो पहली चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए। इतिहास के उत्तर लेखन में, निष्कर्ष में कभी भी आप एक तरफा उत्तर मत लिखिए, हाँ संभावना इसकी ज़्यादा लगती है, आप ये बोलेंगे, बट यू कैन नॉट से लाइक दिस इज द ओनली आंसर। ऐसे यहाँ भी है। तो हाँ, तो इसी क्वेश्चन का जवाब बताइए। आपको डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था, क्या आप सहमत हैं इससे? डलहौजी वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? सिर्फ यस और नो बताइए। कितने लोग यस वाले, यस वाले हाथ खड़े करें। हाउ मेनी यू एग्री विद द यस? बाकी सब नो है क्या भैया? अच्छा आपका पार्शियल है, तो पार्शियल वाले आप हो गए, बाकी लोग क्या भाई यस नो के अलावा, पार्शियल के अलावा कुछ होता है कुछ? क्या और बताइए, पीछे से बताइए। डलहौजी वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। भाई यूपीएससी के लिए आपको बहुत एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो उसमें जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भाई गलत होगा सही हो, दो ही चीज़ तो होगा। बोलिए भाई क्या लग रहा है आपको? हाउ मैनी यू एग्री विद द स्टेटमेंट इट इज़ यस और नो और पार्शली बोथ आर यस एंड नो? बताइए इसमें, इधर स्लो से बताइए, आप लोग बताइए पहले, क्या यस है नो है? जानता था तो कोई बात नहीं, तब तो ठीक है। अच्छा हिस्ट्री आप लोगों ने कहीं, अगर दो ही लोग हैं हिस्ट्री में, यानी किसी का हिस्ट्री रहा है, बैकग्राउंड नहीं रहा है किसी का? अच्छा आप लोग दो लोगों तो रहा है, आप लोग बताइए, आप तो बताइए, उन्होंने बता दिया भाई यस नो है, पार्शली यस और नो दोनों है। अच्छा एनीबॉडी बैक में आंसर बताएं, ठीक है। तो डलहौजी के बारे में सुनिएगा। डलहौजी 1848-56 में था। उसी काल में क्या होता है, भारत में रेलवेज आता है, पोस्ट टेलीग्राफ आता है, और सिविल सर्विस जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की फाउंडेशन रखी जाती है 1853, फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस। ओपन ओपन मतलब सब बैठ सकते हैं, एक परीक्षा ऐसी बनाई जाएगी कोई दे नहीं पाएगा। लंदन में परीक्षा होगी, जहाज में जाएंगे जो पढ़ा पहले भूल जाएंगे। क्यों भाई, बड़े घर के लोग जाएंगे, टैगोर फैमिली के लोग जाएंगे, वही लोग जाएंगे, तो जो पढ़ा होगा पहले आप जहाज में आधे रास्ते में भूल जाएंगे, वापस घर आ जाएंगे। परीक्षा ऐसी बनाई जाएगी। एज लिमिट क्या रखी गई? 21 साल। आपको मालूम है 21 साल में कौन पढ़ लेता होगा, जो भी है। कुल मिलाकर डलहौजी के पीरियड में क्या पाते हैं, ड्रास्टिक रिफॉर्म्स पाते हैं, पोस्ट टेलीग्राफ, रेलवेज, और एक शिक्षा का प्रस्ताव आया है वुड डिस्पैच, जिसमें हर राज्य में क्या और शिक्षा विभाग होना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए शैक्षिक क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, संचार यातायात के क्षेत्र में आकस्मिक परिवर्तन हुए, परंतु उद्देश्य भारत का आधुनिकीकरण नहीं है। मोटिव, ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट मॉडर्नाइजेशन। मोटिव क्या है? ये सीधा सा आंसर। तो आपने ध्यान दिया, हमारा आंसर कभी मेंस में गलत नहीं हो सकता। कम से कम आंसर की ट्यूनिंग क्या है, ट्यूनिंग मतलब आंसर की लय क्या होनी चाहिए। किसी भी ब्रिटिश की पॉलिसी पूछी जाए, आपके पास 20 शब्द तो रखे ही है। इसका उद्देश्य
टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ, हाँ इन द, वही है ना इफ एंड बट इन द लॉन्ग रन, आपने क्या बोला, इट्स मोटिव वॉज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनिज्म, बट इन द लॉन्ग रन, आगे चलकर इट बिकेम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आगे चलकर वो भारत के लिए वरदान हो गया। हमारे पास अब ढांचा पूरा खड़ा, आपको शायद आश्चर्य होगा, आज से 3 साल पहले मीडिया में की रिपोर्ट आई थी, आज भी भारत के पास जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ उसको देखकर, 60%, 60% जो ढांचा बना वो आज भी हमारे पास है, वो ब्रिटिश काल। इसका हमने कितना बनाया, आप समझ कितना बनाया है, तो आप समझ रहे हैं। लेकिन उद्देश्य भारत का कल्याण करना नहीं था, हाँ आगे चलकर वो वरदान हो गया, हमें ढांचा मिल गया। ऐसी शिक्षा व्यवस्था आप देखिए, आज हम लोग वही पढ़ते हैं, हम लोग सब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और अंग्रेजी पढ़ के हम अपने आप को स्मार्ट भी मानते हैं, थोड़ा अंग्रेजी कपड़ा ही पहनते हैं, अंग्रेजी स्टाइल करते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं से इंग्लिश सिस्टम भी जो एजुकेशन आया, आज आप देखिए वही सिस्टम है पूरा। आज़ादी के बाद हमने संविधान में अंग्रेजी को साथ में रखा, पहले हमने 15 साल रखा, अब क्या है बताइए। इंग्लिश वॉज अलाउड टू कंटिन्यू एज ऑफिशियल लैंग्वेज, बट इनिशियली आपको मालूम होगा पहले हमने संशोधन किया था कि 15 साल तक चलाएंगे इसको, बाद में क्या हुआ भाई, फिर हमने उसको इन्फाइनाइट कर दिया, चलता रहेगा। तो देखा आपने कुल मिला के, लेकिन उद्देश्य भारत का आधुनिक बनाना नहीं था, उसका मोटिव क्या था, हाँ हम क्या बोलेंगे, लेकिन बट क्या हो गया, बट इन द लॉन्ग रन वी गॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। आज भी आप ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के जो इंफ्रास्ट्रक्चर रखा डॉलरिक पीरियड में, वो आज भी वैसे ही है, बस अब उद्देश्य बदल गया। उस समय उद्देश्य कुछ और था, आज उद्देश्य भारत का कल्याण करना है। तो उत्तर लिखने में क्या होता, दिक्कत क्या होती है, हमें अगर ये मालूम चल जाता है कि ये तीनों चीज़ें हैं, ब्रिटिश की कोई भी पॉलिसी पूछिए आपसे, एजुकेशन पॉलिसी पूछेगा तो भी आंसर ये हो जाएगा, एजुकेशन पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सबका आंसर एक ही तो है। हालांकि इसके 3 टाइप होते हैं, पढ़ेंगे आप, उपनिवेशवाद के 3 टाइप्स होते हैं। 200 साल के इतिहास में उपनिवेशवाद की मांगे या डिमांड बदलता जाता है। तो वी हैव 3 टाइपोलॉजीज ऑफ कॉलोनिज्म। पहले को बोलते हैं मर्सेंटलिस्ट, क्या बोलते हैं, मर्सेंटलिस्ट। तो नाम सुन लीजिए, जब भारत में अंग्रेजी कंपनी की विजय हो गई प्लासी के बाद, तो प्रथम चरण को इतिहासकारों ने, हालांकि सबसे पहले नाम आता है इनका रजनी पामदत्त, ये एक इतिहासकार हैं, इन्होंने पहली बार ये विभाजन किया है। किताब का नाम है इनका इंडिया टुडे। ये 1940 के दशक में 1940s के आसपास लिखा गया है। इस पुस्तक में पहली बार ब्रिटिश काल का बड़ा माइन्यूट एनालिसिस किया गया है। रजनी पामदत्त इंडिया टुडे, पहली बार ब्रिटिश हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया। इसको उपनिवेशवाद को पहले को नाम दिया गया मर्सेंटलिस्ट कॉलोनिज्म, मतलब मर्सेंट मतलब व्यापार वाणिज्य होता है, इसका मतलब क्या होता है, व्यापार वाणिज्य। तो वाणिज्यवादी पूंजीवाद या उपनिवेशवाद एक ही चीज़ है। तो कभी कभी आप क्या पाएंगे, वाणिज्यवादी पूंजीवाद लिखा होगा, मतलब कैपिटलिज्म लिखा होगा, या कॉलोनिज्म लिखा होगा, बात एक ही है। तो फर्स्ट फेज ऑफ ब्रिटिश रूल इज कॉल्ड एज मर्सेंटलिस्ट कॉलोनियलिज्म। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं कि कंपनी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत के व्यापार और वाणिज्य पर एक अधिकार करना है। एट एनी कॉस्ट दे वांट टू मोनोपोलाइज इंडिया स्टेट कॉमर्स। और इस फेज का शुरुआत प्लासी से आप मान लेंगे, जब तक ब्रिटेन में कारखाना युग का आगमन नहीं होगा। कारखाना युग का आगमन यहीं से माना जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगमन यही माना जाता है। तो उपनिवेशवाद के भी 3 चरण होते हैं, याद रखिए। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज मर्सेंटलिस्ट, मतलब व्यापार और वाणिज्य को सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार बनाइए, मोनोपोलाइज कीजिए। ये कितने साल होता है, लगभग 40 साल यहां मान लीजिए, ऑलमोस्ट 5 डेकेड्स। क्यों भाई, इट इज ऑलमोस्ट 5 डेकेड्स। तो वॉट एवर पॉलिसीज इस काल में क्या होगा, देखिए इससे फायदा क्या होता है आपको, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, ये ढांचा आपके मन में रहता है, तो आप चीज़ों को लॉजिकली सोचते नहीं, इसका आंसर ये होगा, ये होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंपनी की जो भी पॉलिसी, जो भी पॉलिसी चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक, जो भी होगा, उसका उद्देश्य होगा इस उपनिवेशवाद के हितों की पूर्ति करना। इसका मतलब क्या होता है, व्यापार वाणिज्य के हितों को प्राथमिकता देना। आपको ध्यान होगा, जब क्लाइव ने बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारत जीत भी लिया है, ये मैं सरप्राइज सुनो,
भाई किंग ऑफ इंडिया कौन था उसमें, बक्सर समय कौन था भाई? हु वाज द किंग ऑफ इंडिया? आलमगीर टू है या शाह आलम टू है या अकबर टू है? हु वाज द किंग ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बक्सर? शाह आलम टू। तो ये मैं सरप्राइज टू नो उस समय कंपनी को लूटने की पड़ी है भाई। उसको जरा आपको आश्चर्य होगा, बक्सर की विजय के बाद भी इंग्लिश कंपनी का ध्यान क्या, अब हम भारत के संप्रभु शासक तो बन चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना, हमको अपना ये हित साधना है। हमें भारत की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। कौन सी जिम्मेदारी? शासन की जिम्मेदारी। हमें अपना पैसा बटोर के लूट के यहाँ से जाना है। दैट इज़ वाई इवन आफ्टर बैटरी ऑफ बक्सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको अभी टेक्स्ट बुक में डिटेल्स नहीं दिया गया, सुनिएगा इसको। बक्सर की विजय के बाद, पहले हिंदी बोल देते हैं थोड़ा समझने में अच्छा रहेगा। बक्सर की विजय के बाद भी क्लाइव ने बड़ी कूटनीति से क्या किया, शाह आलम टू की, बादशाह भारत का वही है, हिज टाइटल वॉज नॉट एबॉलिश। ये बड़ा विरोधाभास है, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। इवन आफ्टर विक्ट्री ऑफ बक्सर, इंग्लिश कंपनी या क्लाइव बोल दीजिए, हैड नॉट एबॉलिश्ड द टाइटल ऑफ किंग ऑफ हिंदुस्तान। नाइदर द रेड फोर्ट दिल्ली, दिल्ली का लाल किला भारत की स्वाधीनता और क्या नाम है, गरिमा का प्रतीक है। इवन द रेड फोर्ट दिल्ली वॉज अलाउड टू बी रिटेन बाय द किंग ऑफ इंडिया। क्लाइव को मालूम है कि यार हमें भारत में हम लोग शासन तो नहीं करना, हम तो लूटने आए भाई, और लूटने को क्या चाहिए, उसको बस व्यापार मैनेज करना है। इस चरण में कंपनी ने भारत की जिम्मेदारी नहीं चाहती थी कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, पैसा निकालने की थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। उनको लगा भारत का बादशाह बने रहते, हमें क्या बात करना है। तो बड़ा विरोधाभास है। कंपनी बिकेम ए सोवरेन पावर बट इवन देन इट इज नॉट क्लेमिंग इट। ये बड़ा विरोधाभास भी है। भारत का जो बादशाह है उससे कहा गया कि आप बादशाह बने रहिए, हिंदुस्तान का बादशाह, उसके मोहर का इस्तेमाल कर रहा है वो। तो इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। इवन आफ्टर विक्ट्री ऑफ बक्सर, कंपनी हैड अलाउड द किंग ऑफ हिंदुस्तान to carry the title of king of Hindustan, and also he was allowed to preserve the Red Fort Delhi. लाल किला भारत के आन सम्मान का प्रतीक है, भारत की भावनाओं का प्रतीक है। तो अंग्रेजों ने इस पद को जारी रखा, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, यार हमको तो अभी व्यापार वाणिज्य पर फोकस करना है। और आपको यही नहीं, ध्यान दीजिएगा, इस काल में कंपनी ने भारत की भाषा से, भारत के धार्मिक विश्वासों से, नियम कानून में हस्तक्षेप भी नहीं किया। इस काल में कितने साल है, 50 ईयर्स होता है अप्रोक्सीमेटली। In this phase, they don't want to take any liability of governance in India. They don't want to interfere in the customs of India. इस काल में इन्होंने भारत की जो भाषा है, उस समय सरकारी भाषा क्या थी, राजकीय भाषा क्या थी बताइए मेडिवल इंडिया में? What was the official language in medieval India? नहीं, पर्शियन, फारसी भाषा। मध्यकाल में फारसी भाषा रही है, और प्राचीन काल में कहा जाए तो संस्कृत रहा है। तो आपको आश्चर्य होगा, प्लासी बक्सर के विजय के बाद भी इंग्लिश कंपनी ने भारत की भाषा को चेंज नहीं किया। उनको मालूम है कि यार इसमें भारतीय भावनाएं भड़क जाएंगी, हमारा काम है धंधा करना, पैसा ले जाना, भारत लूटना, जो है व्यापार बढ़े, हमको इसको फोकस करना है, कहीं की भावना ना भड़क जाए। तो पर्शियन वॉज अलाउड टू बी कैरिड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अंग्रेजों ने खुद पर्शियन को सीखने के लिए स्कूल बनाया। यहाँ पर एक स्कूल खुला है कलकत्ता में, अभी भी उसके मेमोरी, उसका क्या नाम है, स्टिल एग्जिस्ट देयर, उसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। वो कंपनी के अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और धर्म विश्वास वो चाहते बदल देते हैं, लेकिन मालूम इससे क्या होगा, हमारा उद्देश्य है व्यापार और वाणिज्य को फोकस करना। इस चरण में कंपनी ने भारतीय रीति रिवाजों पर हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, शासन व्यवस्था कुछ भाग संभाला, बट दे वर नॉट सीरियस इन गवर्नेंस। इस चरण में दे अवॉइडेड एनी लायबिलिटी टू गवर्न इंडिया, फर्स्ट फेज। तो इस चरण में कंपनी कोई भी पॉलिसी आप देखेंगे तो उसका उद्देश्य ना हमारे सामाजिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप किया, ना हमारी भाषा बदली। हाँ, गवर्न तो कर ही रहे थोड़ा बहुत, भाई पैसा निकाला गवर्न करेंगे आप। भारत का भाषा ही बना हुआ है। अंतिम बादशाह किसे कहते हैं बताइए? हु वाज द लास्ट किंग ऑफ इंडिया? लास्ट बादशाह किसे कहा जाता है? हाँ, वेरी गुड, बहादुर शाह जफर है ना, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व ना बहादुर शाह, 1857। प्लासी के कितने साल बाद की बात हो रही है? 100 साल बाद की बात हो रही है। ही इज कॉल्ड एज द लास्ट किंग ऑफ इंडिया। देखिए वहां पर जाकर हुआ है, जब विद्रोह हो गया 1857 का, तब अंग्रेजों को क्या लगा कि भाई अब हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और तभी उन्होंने क्या किया, इस पद को समाप्त किया गया, हिंदुस्तान का बादशाह पद समाप्त किया गया, और लाल किले को सेना का मुख्यालय बनाया गया। ये दोनों चीज़ भारतीय सम्मान की प्रतीक थी, हिंदुस्तान में बादशाह का पद और लाल किले की गरिमा। तो लाल किला कब ब्रिटिश का सेना मुख्यालय बना? 1857 के बाद। तो आप समझ रहे हैं इसको। तो कहने मतलब क्या है यहाँ पर,
अंग्रेजों की पॉलिसी को अगर पढ़ना है तो हमको इसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ना चाहिए। आपका प्री में करत तो होगा ही नहीं, मेंस में आंसर राइटिंग अपने आप सही हो जाएगी। तो कोई पॉलिसी पूछी है, उद्देश्य क्या होगा? टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ रेस्पेक्टिव कॉलोनिज्म। फर्स्ट फेज में ये हो जाएगा। सेकंड कॉलोनिज्म का नाम क्या है? इंडस्ट्रियल कॉलोनिज्म। सेकंड का नाम क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल। इसको ऐसा क्यों बोलना है? क्योंकि अब कारखानों से पैसा कमाया जाएगा। ब्रिटिश में कारखाना युग आ चुका है, ब्रिटेन में कारखाना युग आ चुका है। उस कारखाने से भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण किया जाएगा। इसमें क्या था? व्यापार वाणिज्य से शोषण किया जाएगा। कंपनी को भारतीय व्यापार वाणिज्य पर एक अधिकार करना है। पढ़ेंगे, बहुत डिटेल चैप्टर है, ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो इसी में भटक जाएंगे। फिर हम तो संक्षेप में आपको बताना चाहते हैं कैसे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिए, 200 साल के इतिहास में अंग्रेजों की जो भी पॉलिसी बनती है वो 3 उपनिवेशवाद से प्रभावित रही है। फर्स्ट फेज में ये होगा। इस फेज में कंपनी ने भारत में हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा भाई शासन चलाने के लिए। और ये फेज में हस्तक्षेप बहुत डीप हो जाएगा। सेकंड वाला फेज, सॉरी, इंडस्ट्रियल कॉलोनिज्म। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? औद्योगिक पूंजीवाद बोल दीजिए, उपनिवेशवाद बोल दीजिए। पूंजी मतलब पूंजी का सिद्धांत है, पूंजी कमानी है। तो यू कैन स्पीक लाइक दिस, इंडस्ट्रियल कॉलोनिज्म और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड फेज। कब स्टार्ट होगा? जब कारखाना युग का आगमन होता है 1813 से लेकर 57। ये मोटा मोटा माना गया कार्यक्रम। आरपी दत्ता ने इसको यही मान लिया है। इस फेज में क्या होता है? भारतीय इकोनॉमी का उद्देश्य क्या होगा? ब्रिटिश कारखाना पद्धति को चलाइए। जो भी काम होगा भारत में, ब्रिटिश कारखानों को आगे बढ़ाइए। और कारखाने कैसे बढ़ेंगे? भारत को क्या बना दीजिए? भारत को उपभोक्ता बना दीजिए। क्या बना दीजिए? इंडिया को कंज्यूमर्स क्लास बना दीजिए। और भारत अब क्या निर्यात करेगा? रॉ मटेरियल। इस फेज में फायदा तो अंग्रेजों का ही होगा, बट नेचर ऑफ ट्रेड चेंज हो जाएगा। नाउ इंडिया विल बिकम ए कंज्यूमर। भारत ब्रिटिश कारखाना के उत्पादों का क्या बन जाएगा? उपभोक्ता बन जाएगा। भारत क्या निर्यात करेगा? भारत अब रॉ मटेरियल, कपास, नील करेगा। इन दिस फेज आवर इकोनॉमी इज सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ विच इकोनॉमी? यू कैन कॉल लाइक दिस इंडस्ट्रियल कॉलोनीज। और ध्यान दीजिए, इस फेज में कंपनी भारत में बहुत भीतरी स्तर पर हस्तक्षेप करेगी। नाउ दे विल इंटरफेयर वेरी डीप इन द एवरी सेक्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, जो भी आपके पास है। कंपनी को मालूम है कि अब भारतीय बाजार को हमको कब्जाना है। और बाजार को कब्जाने के लिए कहना पड़ता है आपको शासन व्यवस्था में भी, सामाजिक व्यवस्था में भी बहुत भीतरी स्तर पर आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। यू हैव टू इंटरफेयर डीपली इन एवरी एरियाज। और आपको ध्यान होगा इस फेज में जो चार्टर बनते हैं, चार्टर 1833 में क्या कहा गया है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी कॉल्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट मीन स्ट्रक्चर गॉट कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड। इस फेज में कंपनी ने क्या किया? भारतीय शासन व्यवस्था का पूर्णतः केंद्रीकरण। अभी तक प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन यहां पर हमको जरूरत है। अब हमको भारत को बाजार बनाना है। थोड़ा नियंत्रण कैसा होना चाहिए? सख्त होना चाहिए। आप देख लीजिए जो भी चार्टर बीच में आते हैं, भारत को हमको बहुत बड़ा बाजार के रूप में इसमें इसको हड़पना है भाई। तो यहाँ की मनोवृत्ति बदलनी है। ध्यान दीजिएगा सॉरी, शासन व्यवस्था का सेंट्रलाइज देखिए कैसे चेंज होता है। पॉलिटी क्या हो गई? सेंट्रलाइज हो गई। सेंट्रलाइज का मीनिंग आप जानते ही हैं क्या होता है? शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण। कारण क्या है? भारत को मजबूत बाजार बनाना है। जब तक पकड़ नहीं होगी मजबूत नहीं कर पाएंगे। पहले भी था, लेकिन पहले सतही तौर पे था, सुपरफिशियल था। और अब हम अंग्रेजी कंपनी या भारत में डीपली दे विल इंटरफेयर इन आवर सोशल एस्पेक्ट आल्सो। आप ध्यान दीजिए, सती कानून कब लाया गया है? सती निषेध कानून, सती एबोल्यूशन एक्ट 1829, विडो रीमैरिज एक्ट 1856, कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट, सॉरी रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850, स्लेवरी एबोल्यूशन एक्ट 1843। इस काल में अंग्रेजी कंपनी भारत में बहुत गहरे स्तर पर हमारे सामाजिक और मानवताओं में हस्तक्षेप करके अधिनियम के द्वारा हस्तक्षेप करते हैं। क्योंकि उनको मालूम क्या है? अब भारतीयों के मनोवृत्ति को हमको बदलना पड़ेगा भाई। इनको थोड़ा सा अंग्रेजी सिखाना पड़ेगा, इससे अंग्रेजी शिक्षा भी आ जाएगी। भारत की फारसी भाषा को रिप्लेस कर देंगे अंग्रेजी भाषा से। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए 1833 के अधिनियम की सिफारिश के द्वारा।
पर्शियन लैंग्वेज गॉट रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश एंड रेजोल्यूशन वाज पास इन 1833। अब वो भारतीय भाषा को बदलना चाहते हैं, क्योंकि अपना सामान अगर बेचना है तो भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो अंडरस्टूड एक कंज्यूमर क्लास इंडियन ब्रिटिश गुड्स का प्रमोटर बन जाएगा। तो हमारी भाषा बदली जा रही है। और आपको ध्यान होगा क्रिश्चियन मिशनरीज का भी प्रसार चार्टर 1813 में ही लिखा गया है। आप देखिएगा चार्टर 13 में क्या लिखा हुआ है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट 1813। पहले भी आती थी, छूट नहीं थी। इसके बाद क्या होगा, संख्या उनकी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा भाई? सबका आंसर यही है, इंडस्ट्रियल कॉलोनिज्म आ चुका है, भारतीय बाजार पर कब्जा करना है, शासन व्यवस्था केंद्रीकृत किया जा रहा है, हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, इंटरफेयरिंग इन सोशल कस्टम्स। और इस फेज में आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश एजुकेशन तो आ ही गया, ऑफिशियल लैंग्वेज गॉट रिप्लेस बाय इंग्लिश एंड नेक्स्टली एजुकेशन फ्रेमवर्क। इसी काल में मैकॉले ने भारतीय शिक्षा की नींव रखी 1835 में, और आगे चलकर उसका विस्तार किया जाएगा। वुड डिस्पैच आएगा, हंटर कमीशन आएगा। कुल मिलाकर आप देखें सारा काम जो किया जा रहा है, हम लोग हम लोग गलतियाँ करते हैं। हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ते हैं, सोचते हैं काम विकास हो रहा है, विकास तो हो रहा है, चलो ठीक है, वो तो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है। अल्टीमेटली रियल मोटिव क्या है? रियल मोटिव तो एक चीज मन में बैठा लीजिए, इस काल का क्वेश्चन अगर आता है ब्रिटिश काल की तरफ से, आंसर क्या होगा? इस इकोनॉमी को सर्व करना। इस काल का क्वेश्चन है तो क्या आंसर हो जाएगा? उसका मोटिव क्या रहा होगा? आपने कहा ये रहा था। हाँ, लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा? लॉन्ग रन में आप कहेंगे भारतीय इट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो हमारा आंसर अपने आप कम से कम उसका लय सही हो जाती है। बाकी फैक्ट तो जोड़ना ही पड़ेगा, फैक्ट तो आप जोड़ेंगे इसमें, तो कम से कम ये तो क्लियर होगा लिखना क्या है इसमें, आंसर की ट्यूनिंग क्या होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे इस फेज में अंग्रेजों ने क्या किया, सबका आंसर एक ही हो, कम से कम कंक्लूजन एक ही होगा, इसको सर्व करना था। हाँ, लॉन्ग रन में फायदा होगा हमको, वो यहाँ भी हो जाएगा, आप प्रूव कर देंगे, देखिए दिखाएंगे आपको। अच्छी ध्यान दीजिएगा, इस फेज में कंपनी का क्षेत्र विस्तार बहुत तेजी से होता है, इस फेज में नहीं होता इतना। आप ध्यान दीजिए, प्लासी की विजय के बाद, बक्सर की विजय के बाद कंपनी ने कोशिश करी है कि बहुत हो गया, बंगाल है, बॉम्बे, मद्रास है, बाकी बाद में देखा जाएगा। अभी क्या करो, अभी बस व्यापार वाणिज्य को फोकस करिए, इन्हीं बंगाल, बॉम्बे, मद्रास पर। और यहाँ पर क्या हो गया आपको मालूम है, हमको बाजार बनाना है भाई। बाजार कैसे है ना, पूरे भारत को जीतना चाहिए। इस फेज में कंपनी ने बहुत तेजी से विस्तार किया। अवध का विलय कब? यही तो आता है। डलहौजी की हड़प की नीति, गोद प्रथा निषेध कानून, यही तो आता है। बर्मा का विलय, लोअर बर्मा, यहीं पर आता है। पंजाब का विलय यहीं पर आता है, 49। पंजाब का विलय, पंजाब हरियाणा सब एक ही चीज़ है, 1849। अवध का विलय 56, देखा आपने। बर्मा का विलय 1851, अवध का विलय 56। ये ऑल ऑफ सडन ये क्यों हो गया भाई? आंसर बड़ा सिंपल है भाई, बाजार कैसे है ना, उसको नियंत्रण करेंगे, उसको विस्तार कीजिए। इस चरण में कंपनी ने बंगाल विजय के बाद उसको सीमित रहा। हालांकि एग्जाम्पल मिलेगा, लेकिन वो है ना, आप मालूम है वो एक्सेप्शंस है। कुल मिला के आप समझ गए सारी पॉलिसी का मोटिव क्या होता है, उसको सर्व करना। अब आप थर्ड फेज पे आ जाएंगे। थर्ड फेज का नाम है फाइनेंशियल कॉलोनिज्म। फाइनेंशियल, वित्तीय पूंजीवाद या वित्तीय उपनिवेशवाद। तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने ये माइंड में सेट कर लिया तो ये उसकी चाबी है, आधुनिक इतिहास का डायनेमिज्म है ये। जिसने इसको समझ लिया तो आधुनिक इतिहास को पढ़ने में दिक्कत नहीं आती। आप भूल भी जाएंगे तो भी आप कहेंगे नहीं इसका आंसर ये होगा। तो तीन ही है। थर्ड फेज का नाम हो जाएगा फाइनेंशियल। इसको हम यही लिख देते हैं, इसको फाइनेंशियल। ये वहीं से मान लेंगे आप जहाँ से उसको एंड किया है, ये आज़ादी तक सबसे लंबा वाला काल हो जाएगा, 90 साल हो जाएगा ये। तो थर्ड फेज कैन बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल। हिंदी में इसको बोलेंगे वित्तीय पूंजीवाद या वित्तीय उपनिवेशवाद। मीनिंग क्लियर है? वित्तीय मतलब पैसा लगाकर पैसा निकालिए, भारत में इन्वेस्ट कीजिए। तो इस फेज में क्या होगा, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट विल इन्वेस्ट इन इंडिया। भारत में पूंजी का निवेश करके पूंजी निकालिए, साहूकारी वाला काम। साहूकार करता है, पूंजी देता है फिर निकालता है वो। तो अंग्रेजी ब्रिटिश साहूकारी वाला शोषण करेंगे, मतलब भारत में पूंजी निवेश किया जाएगा, पूंजी निवेश करके पूंजी निकाली जाएगी। और आपको मालूम है सबका कुछ ना कुछ कारण होता है। वहाँ कारखाना युग आ चुका था, इसका नाम क्या हो गया था, इंडस्ट्रियल कॉलोनिज्म। यहाँ पर ये क्यों आया, इसके पीछे भी कारण है। ये 100 साल हो चुके हैं, आपको ध्यान होगा कंपनी के भारत में आए हुए 100 साल हो चुके हैं। और 100 साल में ब्रिटेन हैड विटनेस्ड सरप्लस कैपिटल जनरेशन। वहाँ पर बहुत सारी पूंजी आ चुकी है। 100 साल में आपको मालूम है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो ब्रिटेन हैड विटनेस्ड सरप्लस कैपिटल, बहुत ज़्यादा पूंजी आ चुकी है
अब पूंजीवाद क्या कहता है, सरप्लस को तुरंत इन्वेस्ट कर देना चाहिए, सरप्लस शुड बी इन्वेस्टेड। और हिस्ट्री में आपको मालूम है एक आंसर नहीं होता, कई सारे होते हैं। पहला कारण क्या बोलेंगे, पहला ये मेन कारण यही है, ब्रिटेन हैड विटनेस लार्ज कैपिटल एक्यूमुलेशन, उसको इन्वेस्टमेंट करना था तो कहा करें कॉलोनी में कर दे। कॉलोनी मतलब क्या होता है, कॉलोनी मतलब आपको मालूम है क्या होता है। सेकंड कारण क्या हो जाएगा, आप समझे इसको नहीं। पहला कारण क्या हुआ, पूंजी का पर्याप्त एकत्र हो चुकी है, सरप्लस आ चुका है। सेकंड क्या हो जाएगा, कंपटीशन। यहां तक आते आते कारखाना युग फ्रांस में भी आ गया, बेल्जियम में भी आ गया। और आपको मालूम होगा जब कंपटीशन होता है तो पूंजीपति क्या करता है, अपनी लागत को कम करने का प्रयास करता है। तो सेकंड कारण क्या कह सकते हैं आप, भारत में निवेश क्यों होने जा रहा है, ब्रिटेन को अपने प्रतिद्वंदी कंपटीटर्स के साथ कंपटीशन हो रहा है, फ्रांस और बेल्जियम से। तो कंपटीशन क्या करते हैं आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं। भारत में निवेश करेंगे तो फायदा क्या होगा, कच्चा माल मिल जाएगा आपको, और श्रम क्या होता है, लेबर क्या होती है, सस्ता हो जाएगा। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण, थर्ड कारण क्या हो सकते हैं आप, 1857 का विद्रोह हो चुका है, तो कंपनी या ब्रिटिश सरकार भारत में संदेश देना चाहती है कि हम भारत का विकास कर रहे हैं, कारखाने खोलते हैं यहाँ पर। तो लगभग ये 3 कारण कह सकते हैं। तो फाइनेंशियल कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है, नाउ ब्रिटिशर्स आर इन्वेस्टिंग कैपिटल इन इंडिया, बट ओनर कौन होगा, ओनर वही है, लाभ उनको ही मिलेगा। इस फेज में दे विल इन्वेस्ट इन इंडिया। किस में करेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कॉलोनी है, कॉलोनी मतलब उपनिवेश। जो भी काम होगा किसके लिए होगा, ब्रिटिश मदर कंट्री के वेलबींग के लिए होगा। आपको आश्चर्य होगा, पूंजी निवेश जो भी किया जाएगा वो उन कारखानों में किया जाएगा जहां पर उन कारखानों में किया जाएगा जो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री हो। कंज्यूमर मतलब हैवी इंडस्ट्री नहीं होगा। हैवी इंडस्ट्री में क्या आता है भाई, आयरन, स्टील, सीमेंट आता है। उनको मालूम है उपनिवेश हमारा, उपनिवेश में हम क्या करते हैं, हमें शोषण करना है भाई। तो उन्होंने किस पे इन्वेस्ट किया, कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कपड़ा, कागज, ग्लास, चमड़ा। भाई श्रम सस्ता है, काम कराइए, पैसा लीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए। तो दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द हैवी इंडस्ट्रीज बिकॉज कॉलोनी है भाई। तो इस फेज में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इन कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। बैंकिंग, बैंक, भारत में आधुनिक बैंक आ जाएंगे, जहाज आ जाएंगे, आधुनिक शिपिंग कॉर्पोरेशन आ जाएंगे, रेलवे भी आ जाएगा। रेलवे का स्थापना हालांकि पहले चरण में आ जाती है, 53 में आ जाती है। इसमें बहुत तेजी से विस्तार होगा उसका जो है। आपको आश्चर्य होगा, रेलवे का निर्माण सरकार ने राजस्व नहीं कराया, रेलवे का निर्माण का ठेका दिया गया है ब्रिटिश पूंजीपतियों को। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे वॉज नॉट मेड बाय द रेवेन्यू ऑफ इंडिया, ए कॉन्ट्रैक्ट वॉज गिवन टू द ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्ट कौन, कैपिटलिस्ट होते हैं, ठेकेदार कौन होता है, पूंजीपति तो होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉज गिवन टू द ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन ए गारंटीड इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। आप जो पैसा लगाएंगे, डरिए मत, ब्रिटिश सरकार आपको 12% ब्याज देगी। तो कुल मिला के इस काल में जो भी निवेश हो रहा है उसका उद्देश्य भारत का विकास नहीं, हाँ, लेकिन आप क्या बोलेंगे, वही बड़ी हो जाएगा। इन द लॉन्ग रन इट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो कुल मिला संक्षेप में आपने देखा, कोई भी क्वेश्चन इस खंड से आता तो आंसर ये हो जाएगा, उसका लय ये हो जाएगा, इस खंड से आता है तो ये हो जाएगा। और जो कि कोई पॉलिसी पूछी जाएगी सबका आंसर आपको मालूम है क्या, कम से कम लय मालूम है आपको। अब ये इसकी बात की जा रही है, नेशनलिज्म। बताइए राष्ट्रवाद क्या होता है, ये तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस के भाई महारथी होंगे आप लोग, है ना, मिश्रा जी आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। बताइए राष्ट्रवाद क्या होता है, सबका ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस ही होगा आप लोग का शायद। आपका क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, कोई बात नहीं। मेजॉरिटी ऑफ देम यू मे बी शायद हैविंग ऑप्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का तो भाई जड़ सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत है राष्ट्रवाद। बताइए। वेरी गुड। और बताइए, ठीक है आप, लेकिन आपका एक ओनली वन एस्पेक्ट है इसमें, एक एस्पेक्ट मिसिंग है। हाँ, वेरी गुड, बट यू आर स्पीकिंग ओनली वन एस्पेक्ट। सही है आपका, एक एस्पेक्ट, बड़ा कोर एस्पेक्ट मिसिंग है। और बताइए राष्ट्रवाद। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। अब ये पूरा हो गया। कुल मिला के कहा जाए राष्ट्रवाद, हालांकि बहुत सारी परिभाषाएं हैं, है ना, और हम लोग थोड़ा सा भाई, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें क्योंकि विवाद होता है। लेकिन हाँ, जो एक सटीक परिभाषा कही जा सकती है, नेशनलिज्म इज ए फीलिंग, है ना, वे द पीपल ऑफ एनी टेरिटरी, पीपल ऑफ एनी टेरिटरी, यानी मतलब छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। राष्ट्रवाद छोटे क्षेत्र में हो सकता है, बड़े में हो सकता है। तो नेशनल इट इज ए फीलिंग, फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग, यू नो, इन ए पीपल लिविंग इन एनी टेरिटरी,
इफ पीपल ऑफ एनी टेरिटरी, ऐसे बोल लीजिए आप, इफ पीपल ऑफ एनी टेरिटरी, एनी मतलब स्मॉल बिग कुछ भी हो, people of any territory are bound together by some common language, common culture, common history, कुछ भी common हो जाए, people of any territory are bound together by some common culture, common language और common history और something else, कुछ भी हो जाए, ये एक एक्सपेक्ट होता है। आप टुगेदर क्यों है? क्योंकि आपके पास एक भाषा या इतिहास कुछ भी हो, एंड स्टैंडिंग टुगेदर फॉर कॉमन कॉज। कश्मीर में क्या हो रहा है अगर हमें चिंता है तो हम कहेंगे यार राष्ट्रवाद की भाव हमारे अंदर है। तेलंगाना में क्या हो रहा है या अंदमान में कुछ भी हो रहा है, हम उसको सोचते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं। तो दो एस्पेक्ट होते हैं राष्ट्रवाद में, आप यूनाइटेड होने चाहिए किसी कॉमन के थ्रू, भाषा, संस्कृति, इतिहास हो। दूसरा क्या होगा, आप उस मुद्दे को लेकर एक सामूहिक एक उसमें एकजुटता होनी चाहिए। और राष्ट्रवाद का अगर कहा जाए, जन्मदाता किस क्रांति को माना जाता है बताइए? विच रेवोल्यूशन द वर्ल्ड हिस्ट्री कैन बी कॉल्ड एज द मदर ऑफ नेशनलिज्म? हाँ, वेरी गुड, बताइए क्या कारण है? फ्रेंच। उससे पहले राष्ट्रवाद कैसा राष्ट्रवाद था? हाँ, वेरी गुड। उससे पहले जो राष्ट्रवाद होता था वो राजाओं का राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद राजा की जो है पर्स होता है, जब पैसा होता ना किसी को भी देना ले जाता। याद रखिए, विश्व इतिहास में आप देखेंगे बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन राष्ट्रवाद वो उसको बोलेंगे राजतांत्रिक राष्ट्रवाद, मतलब डायनेस्टिक नेशनलिज्म। राज जो है राजा की संपत्ति होता था। आपको याद होगा फ्रांस का राजा लुई XIV क्या कहता था? मैं ही राज हूँ। उस समय राजा लोग अपने देश को किसी भी भाग को किसी को आप गिफ्ट में दे सकते थे। बट फ्रांस की क्रांति पहली बार मध्यम वर्ग द्वारा लीड की गई थी और पहली बार उसे मिडिल क्लास की जो वैल्यूज को रखा गया और आगे चलकर उसका विस्तार होता जाता है। हमारे संविधान में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आप समझ गए होंगे राष्ट्रवाद में दो चीज़ जरूरी होती हैं, आपके अंदर एक बॉन्ड होना चाहिए और उस बॉन्ड को लेकर आप एक सामूहिक समस्या के समय सामने एक साथ खड़े हो सके। पीपल शुड बी यूनाइटेड टुगेदर फॉर ए कॉमन कॉज, हाँ, एंड दे शुड हैव सम कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज। तो दो चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ के इतिहास में आप देखें, अभी यूपीएससी ने लास्ट ईयर बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि रिवोल्ट ऑफ 1857, आप समझ रहे हैं 1857 का विद्रोह। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मोरलेस थोड़ा बहुत यही लैंग्वेज थी। whether it is correct to call the revolt of 1857, the language more or less यही था, whether it is correct to call the revolt of 1857 the culminations of tribal revolt or peasant rebellion going in the last 100 years। पिछले 100 साल में जितने भी जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह हुए हैं, उस सबका ये एक कल्मिनेशन था। तो यूपीएससी कहीं ना कहीं से पूछने कोशिश करी क्या इस 1857 के विद्रोह को हम पिछले 100 साल में, 100 साल हो ही जाते हैं, क्या हम प्रतीक मान सकते हैं? क्या वो एक राष्ट्रीय आवाज़ था क्या? तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ये बड़ा, क्योंकि आपने देखा ही मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ 3 टॉपिक आते हैं। राष्ट्रवाद के अंदर हम पुनर्जागरण को बोल सकते हैं, रिनेसा। कहीं ना कहीं हम एक होकर अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, एक हो जाते हैं। तो रिनेसा इज आल्सो, देखिए रिनेसा क्या बोलेंगे हम, देखिए ध्यान दीजिएगा, रिनेसा नाम सुना है अभी आपने 19वीं सेंचुरी बाद, इसको हम क्या बोलेंगे? देखिए एक वर्ड ये लिखा गया है, इसका मीनिंग क्या होता है बताइए भाई? although it is not true nationalism but we can call it as a prototype of nation। आदि राष्ट्रवाद तो बोल ही सकते हैं। भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश संस्कृति, ब्रिटिश व्यवस्था को लेकर चुनौती दी और समाज को नए सिरे से निर्माण करने का प्रयास किया। तो अभिव्यक्ति है। अभी हमने पढ़ा नेशनलिज्म क्या होता है, आपने कहा भाई पीपल ऑफ एनी टेरिटरी यूनाइटेड बाय सम कॉमन बॉन्ड एंड दे आर स्टैंडिंग फॉर सम कॉमन कॉज। तो ये पुनर्जागरण वही चीज़ तो है। हमने अपनी स्वराज स्वदेशी शब्द का जन्म दिया। तो नेशनल दिस रिनेसा कैन बी कॉल्ड एज नॉट ट्रू, इसको क्या बोलेंगे? असली वाला तो नहीं है लेकिन प्रोटोटाइप, आदि वाला प्रोटोटाइप नेशनलिज्म। और इसमें देखिए क्या क्या आ जाएगा। तो ये भी राष्ट्रवाद का एक आदि रूप है, स्पष्ट तो नहीं है लेकिन आदि रूप हो सकते हैं। ऐसे ही आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी आप मेजॉरिटी ऑफ ये पीजेंट, जितने भी किसान ये जनजातीय विद्रोह देखते हैं, हालांकि राष्ट्रवाद स्पष्ट राष्ट्रवाद तो नहीं है वो, बट वी कैन कॉल देम एज प्रोटोटाइप ऑफ अर्ली नेशनलिज्म। कहीं ना कहीं वहाँ के लोग, राष्ट्रवाद की जरूरी नहीं है बहुत बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। राष्ट्रवाद का अभी लिखा आपने, सुना है आपने, पीपल ऑफ एनी टेरिटरी, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है,
यूनाइटेड बाय सम कॉमन समथिंग एंड स्टैंडिंग फॉर कॉमन कॉज। तो राष्ट्रवाद का प्रतीक तो मान सकते हैं हम। तो जनजातीय विद्रोह को भी, किसान विद्रोह को भी हम राष्ट्रवाद का एक प्रतीक तो मान ही सकते हैं, भले ही वो स्पष्ट राष्ट्रवाद नहीं है। तो इसको भी हम कह सकते हैं। और इसको भी ध्यान दीजिए क्या लिखा है, इसको भी आप, स्पष्ट नहीं है लेकिन आदि रूप तो कह सकते हैं, प्रोटोटाइप। और ये नेशनल मूवमेंट हो गया हमारा, ये क्या हो गया, नेशनल मूवमेंट हो गया। तो इसी को ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रवाद एक बड़ी जटिल अवधारणा है, जिसमें हम क्या कह सकते हैं, भारत के इतिहास में जितने भी कृषक, जनजातीय या पुनर्जागरण, इसको हम राष्ट्रवाद का प्रतीक तो मान सकते हैं। हाँ, ऑर्गेनाइज नेशनल मूवमेंट कांग्रेस से स्टार्ट होता है, वो ऑर्गेनाइज है 1885 से लेकर 1947 तक। तो ये सोच बहुत ज़रूरी है। हम क्या सोचते हैं कि राष्ट्रवाद तभी आएगा जब कांग्रेस आएगी। तो वी कैन कॉल लाइक दिस ऑल अनरेस्ट गोइंग बिफोर, दे कैन बी आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोटाइप ऑफ नेशनलिज्म। और यहाँ पर इसके अंदर आपको भी एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, इस राष्ट्रवाद को जो ऑर्गेनाइज नेशनल, ऑर्गेनाइज मतलब कांग्रेस के बाद वाला जो है, इसके लिए आप एक चीज़ यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा चाहे तो। इसको 4 हम फेज में बांट सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के आंदोलन की बात कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। पूरा कांग्रेस का इतिहास जो है 1885 से लेकर 1947 तक सिर्फ और सिर्फ 4 गोल के चारों तरफ घूम रहा है। जब कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में होती है। तो इस फेज में कांग्रेस का, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट फेज बोलेंगे भाई, 1905। तो फर्स्ट 20 ईयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस ये मॉडरेट फेज है। इस फेज में कांग्रेस ने गोल किया है भाई सिर्फ और सिर्फ DOI, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखा आपने, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है वो जोड़ के पूछ रही है। अभी भी इस बार अभी लेटेस्ट क्योंकि गांधी का ये दोनों साल जो गए, 2019 वाला मेंस आप देखें, 2020 वाला मेंस देखें, जो गांधी का आपको मालूम है 150 बस सेंट्री बन रही है। 2019 में भी यूपीएससी ने गांधी में क्वेश्चन पूछा है, 2020 में भी गांधी क्वेश्चन आया है। जो गांधी ने भारतीय राजनीति को एक दिशा दी है। तो उस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन एक टॉपिक जुड़ा हुआ नहीं है, वो 3-4 टॉपिक जुड़ा हुआ है। गांधी ने कैसे राष्ट्रीय आंदोलन का नया रूप दिया, तो उसमें क्या आएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो हमें जोड़ने का एक, तो इसको आप अच्छा रहेगा आपके लिए। तो राष्ट्रवाद ये ऑर्गेनाइज राष्ट्रवाद है कांग्रेस वाला। फर्स्ट फेज में क्या डिमांड है भाई, भारत का विकास। कौन सा विकास, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक। कौन मांग रहा है, उदारवादी मांग रहा है। इसमें शासन में भागीदारी नहीं मांग रहे हम लोग। वी आर नॉट डिमांडिंग शेयर इन द गवर्नेंस, व्हाट वी आर डिमांडिंग, व्हाट डेवलपमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। बट वी आर नॉट क्लेमिंग एनी स्वराज। यहां पर हम स्वराज की बात नहीं कर रहे हैं। और आपको मालूम है ये प्रकृति का एक सत्य है, लॉ है। समय के हिसाब से हर चीज़ परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। राष्ट्रवादी आंदोलन यहाँ मैच्योर हो जाएगा, 20 साल हो जाएंगे। 1905 बोल दीजिए, 1906 बात एक ही है, बाउंड्री पे है वो। आप चाहे 1906 बोल दीजिए। 28 सेकेंड फेज, राष्ट्रवादी आंदोलन थोड़ा परिपक्व हो जाएगा। यहाँ पर पहली बार राष्ट्रवादी आंदोलन के 2 मंत्र हैं, स्वराज, स्वदेशी। स्वराज मतलब क्या होता है, शेयर इन गवर्नेंस, और स्वदेशी मीन्स रिवाइवल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रिवाइवल ऑफ इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर गोल ये हो जाता है। तो इसको अगर आप माइंड में हमारे सेट होता है, ये माइंड मैप हो गया एक तरह से। जैसे कॉलोनिज्म का मैप किया आपने का 3 चरण होते हैं, उसमें उससे क्या फायदा होगा, अंग्रेजों की कोई पॉलिसी पूछी जाएगी आपका सही हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा। राष्ट्रवाद के मालूम, अच्छा ये होना, इस फेज का है तो ये होगा, इस फेज का है तो ये होगा। फर्स्ट फेज में क्या डिमांड है, भारत का विकास किसके द्वारा, ब्रिटिश द्वारा। सेकंड में क्या डिमांड है, हम और मैच्योर हो गए, हमने कहा हमको भागीदारी चाहिए। स्वराज मतलब भागीदारी। और ध्यान दीजिएगा, अभी आपने सुना है इन दोनों शब्दों का जन्मदाता किसको कहेंगे आप, पुनर्जागरण आंदोलन को। स्वराज दयानंद और स्वदेशी देशमुख, दोनों लोग कौन है, पुनर्जागरण के धर्म सुधारक हैं। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार करी है। रिनेसां हैड क्रिएटेड द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उसने समाज को जातिगत धार्मिक संकीर्णताओं से बाहर निकाला है, तभी तो बहुत भूमिका आएगी। और निकालने के बाद हमको क्या दिया है, हमको सिद्धांत दिया है।
तो पुनर्जागरण राष्ट्रवाद से पहले आ रहा, उसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई है। भारतीय समाज आपको मालूम ही है कितना जटिल समाज है, यहाँ पर राष्ट्रवाद लाना इतना आसान नहीं था। ये सौभाग्य कहिए, अगर ब्रिटिश साम्राज्य भारत में नहीं होता तो शायद राष्ट्रवाद का स्वरूप ऐसा नहीं होता। तो हमारे लिए वरदान भी कह सकते हैं आप। तो स्वराज स्वदेशी का जन्मदाता कौन था? पुनर्जागरण आंदोलन था, और वही कांग्रेस का मंत्र बन जाता। कब? 1906 कलकत्ता के अधिवेशन से। अधिवेशन कौन सा है? कलकत्ता वाला है भाई, उस समय की राजधानी यही है। तो महत्वपूर्ण अधिवेशन कलकत्ता में, कभी ध्यान दीजिएगा, अधिकांश विकल्प अगर लगाना हो तो कलकत्ता सही हो जाएगा अपने आप आपका। 1906 कलकत्ता। क्या हुआ? पहली बार स्वराज स्वदेशी को राष्ट्रीय आंदोलन का मंत्र बनाया गया, और ये चलता रहेगा कब तक? आगे चलकर गांधी इसमें सुधार करेंगे थोड़ा सा। ये नंबर 3 आ गया भाई, थर्ड फेज आ गया। अब ये मांग और परिपक्व हो जाएगी, समय के हिसाब से चीज़ परिपक्व होती है। यहाँ पर मांग आ जाएगी डोमिनियन स्टेटस। ये शब्द सुना आपने कभी? डोमिनियन स्टेटस। अब राष्ट्रवादी आंदोलन थोड़ा सा और परिपक्व हो जाता है, स्वराज स्वदेशी के आगे एक नई मांग जुट जाती है। इसका अधिवेशन भी कलकत्ता, देखा आपने? तो कहीं अगर अनुमान लगाना है तो आप लगा सकते हैं। हाँ, किस्मत खराब है तो गलत भी हो जाएगा, लेकिन अधिकांश जगह सही हो जाएगा। 1906 कलकत्ता, 1928 कलकत्ता। और यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी 1906 में, और यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी कलकत्ता में। तो यहाँ पर पहली बार राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास में कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की मांग को रखा, जिसका मतलब ये होता है, शाब्दिक अर्थ ये होता है अंतर्राष्ट्रीय पहचान। उपनिवेश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी जाए। उपनिवेश की कोई पहचान नहीं होती है। आप उपनिवेश मतलब कुछ नहीं, बस अपने मात्र राज्य की हितों की पूर्ति करें। तो जब उपनिवेश पुराना हो जाता, प्राचीन हो जाता है, तो उपनिवेशों को ब्रिटिश सरकार ये अधिकार देती थी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। इसका मतलब क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपनिवेश के प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। डोमिनियन स्टेटस। तो whenever colony became very old, the leaders of the colonies were given a right to participate on international forums. तो थोड़ा सा एक मैच्योर डिमांड हो जाती है, उपनिवेश को एक पहचान मिल जाती है। तो कलकत्ता के अधिवेशन में गांधी ने प्रस्ताव पारित किया। हाँ, नेहरू रिपोर्ट में लिखा भी हुआ था, यहाँ पर आ जाता है। और ये फोर्थ फेज है, इसको आप 1929, इसको आप एक ही साल रहेगा भाई, ये 29 कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। 28 से 29 बोल दीजिए। एक साल तक राष्ट्रवादी आंदोलन की राजनीतिक मांग क्या रही है? डोमिनियन स्टेटस। और ये 1929 आ जाएगा। यहाँ कलकत्ता बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अधिवेशन है लाहौर का, और स्वराज शब्द का संशोधन किया जाएगा, और क्या बन जाएगा? पूर्ण स्वराज बन जाएगा। देखा आपने, राष्ट्रवादी आंदोलन की मांगों का ये मैप बन गया। आपको याद रहेगा कैसे बोलना है। तो ये हो गया। और थर्ड आपका ये कम्युनिज्म है। 2 लाइन इसके बारे में सुन लीजिए, कल से हम लोग औपचारिक पढ़ेंगे। इसके बारे में 2 लाइन सुन लीजिए। संप्रदायवाद क्या होता है बताइए भाई? थोड़ा सा और सही करिए, थोड़ा सा और स्पेसिफिक करना पड़ेगा आपका। ब्रॉडली यू आर करेक्ट, बट मेक इट मोर क्लियर, क्योंकि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आना चाहिए। संप्रदायवाद, तो ये एक भावना होती है, इट इज फीलिंग, यू नो। समाजशास्त्रियों ने कैसे परिभाषित किया है संप्रदायवाद को? ये वंचना का भाव होता है। जब किसी धार्मिक समुदाय के अंदर वंचना का भाव, वंचना जानते हैं, डिप्राइवेशन, व्हेन एनी रिलीजियस कम्युनिटी, एनी फील डिप्राइव्ड, कहाँ पर? सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कहीं भी। जब किसी धार्मिक समुदाय के अंदर वंचना का भाव आता है कि हमको वंचित किया जा रहा है, काहे में? सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में भी, उसको भड़का देंगे तो दंगा हो जाता है सांप्रदायिक। ये फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन। और इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने यह भी बोला है कि अधिकांशता, ये बड़ा अजीब से ये कॉन्ट्रडिक्शन है, डिप्राइवेशन अधिकांशता वो सेकुलर होता है, उल्टी चीज़ है। आप भेदभाव, आपको लगता है हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास हमारा राजनीतिक भागीदारी नहीं है, तो इतिहासकार बिपिन चंद्रा का ये भी कहना है
अधिकांशतः ये देखा गया है कि डिप्राइवेशन इज ऑफनली सेकुलर। आपको भेदभाव कहाँ हो रहा है कि साहब हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारी राजनीतिक भागीदारी शून्य है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं कि हमारा सेकुलर भागीदारी बहुत जीरो है। तो कुल मिला के आप ध्यान रखिए, संप्रदायवाद एक वंचना का भाव होता है। इट इज ए फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन इन एनी रिलीजियस कम्युनिटी। और इसके बारे में पूरी कहानी आपको मालूम ही होगा। ये ब्रिटिश पॉलिसी की देन है, डिवाइड एंड रूल का गेम है। 1857 के विद्रोह के बाद उनको लग गया कि इस भारत को चलाना मुश्किल है, इसमें यही काम करना पड़ेगा, बांटो और राज करो। तो कीप इन योर माइंड, इट इज ओनली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 57 ब्रिटिश पॉलिसी मेकर्स डिसाइडेड एट हाउ टू गवर्न इंडिया। बिकॉज वो आपको आश्चर्य होगा, 1857 का विद्रोह जो था ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था और बड़ा वो सरप्राइजिंग भी था। उनको उम्मीद नहीं थी कि भारतीय विद्रोह करेंगे। भारत की इमेज बड़ी सॉफ्ट थी। उनको मालूम है गीता में क्या लिखा है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। उनको लगा भारतीयों के अंदर कभी विद्रोह के गुण ही नहीं होगा। एंड आपको यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, 1857 के विद्रोह के बारे में बताइएगा, एक लाइन यस और नो बताइएगा। रिवोल्ट ऑफ 57 जो हुआ है, द रूल ऑफ द कंपनी वॉज एबॉलिश्ड आफ्टर द रिवोल्ट और इन बिटवीन द रिवोल्ट। क्वेश्चन समझ गए आपने? हमने क्वेश्चन है कि रिवोल्ट का when the revolt triggered, you know, the company's rule got abolished in between the revolt or after the end of the revolt? In between है। ब्रिटिश संसद को लगा कि भाई रिवोल्ट के बाद पता नहीं भारत कैसा होगा, भारत अगर खो गया तो दोबारा कैसे पाएंगे। तो रिवोल्ट होने के बाद, रिवोल्ट के बीच में ही संसद ने कानून पारित किया है अगस्त 58 में। हमारे मन में क्या आएगा, रिवोल्ट के बाद होगा। रिवोल्ट के बाद भारत अगर खो गया तो क्या करें, खो गया तो खो गया। They cannot take risk. So you may surprise to know, company's rule was abolished in between the revolt, not after the revolt, because they cannot take risk. और उसके बाद वो बड़ा they became very much cautious how to manage India. उनको लगा इंडिया संभालना आसान नहीं है। उनको लगता है भारतीयों के बारे में जैसे सुना था कि ये गीता के हिसाब से कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएं, खाली हाथ जाना है, इनका मन के भरोसा कुछ नहीं, कब क्या करेंगे। They became very much cautious about India. और उन्होंने क्या अंदाज लगाया कि उनको लगा कि इस देश के इतिहास में लगभग मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का गवर्नेंस कब से रही। आपने देखा यहाँ पर 1200 से लेकर रिवोल्ट यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। कितना साल है ये, लगभग ये 700 साल होता है, 700 ईयर्स ऑलमोस्ट। तो ब्रिटिशर्स ने बड़ा स्टडी किया इस पर कि कैसे संभाला जाएगा इसको। तो उनके माइंड में आया कि बीच में ये कम्युनिटी जो आई है यहाँ पर 700 साल के लिए, इसने गवर्नेंस किया पूरा, इसको ऑल ऑफ सडन हम इसको डिप्राइव करते हैं। तो व्हाट दे डिड, यू नो, आफ्टर द रिवोल्ट दे डिसाइडेड to deprive the Muslim community. For what? In the modern structures which take birth after the revolt. आपको याद होगा रिवोल्ट के बाद ही भारत में आधुनिक संरचना का वास्तविक विकास हुआ है। तो आफ्टर द रिवोल्ट they deliberately deprived the Muslims for taking benefits of modernization. उनको स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, संसदीय व्यवस्था, आपको ध्यान होगा विद्रोह के बाद ही हमारे यहाँ क्या आता, भारतीय परिषद अधिनियम आते हैं, उसमें भारतीयों की भागीदारी तय की जाती है कि मुस्लिमों को बाइकआउट रखा जाएगा। कुल मिला के कहा जाए विद्रोह के बाद, हालांकि विद्रोह के बाद ही आता है, 50 साल तक मुस्लिम कम्युनिटी वॉज डिप्राइव्ड, उनको डिप्राइव रखा जाएगा। और जब 50 साल पूरे हो जाएंगे तब उनको बताया जाएगा कि आपको डिप्राइव किया जा रहा है। और जब डिप्राइव किया जा रहा है उनकी तक फीलिंग आ जाएगी। आप देखिए उदाहरण देखिएगा, बड़ा अच्छा सा उदाहरण है। विद्रोह समाप्त यहाँ पर हो जाता है 1858-59 के आसपास। इसके अगले साल 50 साल तक, मतलब 1905 तक वहाँ से ये 50 साल ऑलमोस्ट हो जाता है। कीप इन योर माइंड, ऑलमोस्ट फॉर 5 decades Muslims were deliberately deprived. Where? In social sector, political, economical, everywhere you can say like this. Then who got benefited? Hindus got mostly benefited. इन 50 सालों में हिंदू समाज का बहुसंख्यक काफ़ी संख्या में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास हुआ। और जब 50 साल पूरे हो जाएंगे, now they will ask the Muslim leaders, you are deprived, why you not raise your demands? और उसका प्रयास कैसे करेंगे? बंगाल विभाजन कब होता है भाई? डेट क्या है उसकी? हिस्ट्री में कुछ तारीख बहुत इंपॉर्टेंट सब नहीं होती है। 16 अक्टूबर मुस्लिम लीग की स्थापना, मिंटो मॉले रिफॉर्म्स, पृथक निर्वाचक मंडल 99। तो ध्यान दीजिए, सब एक क्रम से आ गया। देखा आपने, उनको मालूम था अब संप्रदायवाद की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है, अब हमको बस उसका बीज रखना है। ये बीज रखा जा रहा है। तो अंग्रेजों ने बड़ी होशियारी से काम किया। पहले एक कम्युनिटी को रोक दिया
और 50 साल बाद उस भावनाओं को जन्म देने के लिए उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। बंगाल विभाजन पूरा उद्देश्य वही था। और मुस्लिम लीग बनती भी कहाँ, आपको मालूम, ढाका ही बनती है। और इसका मोटिव क्या, पृथक निर्वाचन मंडल का, कैसे मुस्लिम समाज के अंदर राजनीतिक चेतना लाई जाए। पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है बताइए, मुस्लिम इलेक्टोरेट बनाए जाएंगे जिसमें मुस्लिम वोटर भी होगा और मुस्लिम कैंडिडेट भी होगा। तो ठीक है, कल चर्चा करते हैं, थोड़ा सा थके भी है। तो कुल मिला के निष्कर्ष में बताइए, स्पीड आप लोग को कुछ लोग पीछे बताइए, स्पीड को कुछ परफेक्ट, चलिए थोड़ा धीरे करेंगे, थोड़ा सा आप लोग को अच्छा लगे। और ठीक है, कल चर्चा करते हैं।